Of then undivided Madhya Pradesh, present Madhya Pradesh and Chhattisgarh, and completed his B.Tech in electronics from BITS Pilani with distinction in 1984. After it was here that he felt the need for quality education, and the dream called Vindhya Institute of Technology and Science was born in 2002. As a school mentor, he believes in raising level of all students on a continuous basis. They are made to compete with themselves. They are encouraged to think, to innovate, and shoulder responsibility for their actions. We always want to create proactive individuals who are constantly and relentlessly adding value to their environment of life. As a father, he himself is a great example with the way he brought up his daughter. A huge round of applause. I would now request sir to. We are so grateful to have you. Greatest is the hand that rules the world. The hands of a mother. Mother is a symbol of love and care. She is our first teacher, friend, and inspiration. Today, I take immense pleasure in introducing you to Mrs. Shruti Sinani. Mrs. Shruti Sinani. Although mothers are incomparable as they are special in their own way, there is something special about Shruti ma'am. With two daughters whom she has nurtured so well that it is reflected in them today, the most important thing that she taught her daughters was to have confidence and belief in themselves. She knew from her experience how important for people to believe in themselves is to be a balanced being. The key point to note here is the simplicity that she instilled in her daughters. Ma'am has made a difference in her daughter's life, because of which they are able to contribute to the well-being of society. Dear parents, please welcome ma'am with a huge round of applause. We are so grateful to have you here, ma'am. Great example of perfect upbringing, a well-bred and cultivated daughter. Not only a great daughter for her parents, but also an excellent human being, respecting values and making meaningful contributions to the people's life around. As an individual, she has made her own choices and taken her own independent decisions, which she and everyone is proud of today. It is because of her thought that the WIT school took its form. She believes all human beings can live much more powerful life than what they are living at any point of time by aligning their paradigms with reality. She always keeps on sharing her ideology, which helps making students of the WIT school empowered and responsible. Also, she taught us all to believe in ourselves and make a difference. We are proud to flourish with her. Sindhya ma'am is an alumnus of Shriram College of Commerce, Delhi and Sayed Business School, University of Oxford, UK. A woman of great virtue and simplicity. I feel elated to introduce her to everyone. Ma'am is deeply passionate and committed to social sector since early age. She has spent her time since college years in empowering marginalized sections of society for their sustained. We
Dear parents, please welcome ma'am with a huge round of applause. I would now request ma'am to please accept the memento of love. थैंक यू सो मच। इन ऑडियंस को 10 बजे इतनी दूर बुलाना बड़ा कठिन काम है और आप सबने इसको पूरा किया है, इसके लिए यही कह रहा था कि सुबह लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर इंदौरी लोग रात को 4 बजे तक डिनर करते हैं या अगले दिन का ब्रेकफास्ट करते हैं, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एट दिस आवर अर्ली इन द मॉर्निंग। और आप सबको बहुत बहुत बधाई। अब आप सोच रहे हो किस बात की बधाई दे रहे हैं यार। बधाई अमूमन अपन किनको देते हैं? जिन्होंने कुछ लाइफ में अचीव किया होता है, जिनको हाल में लगता है कोई सफलता मिलती है, लोग उसकी बधाई देते हैं। तो बधाई क्यों दे रहा हूँ ये मेरी अगली बात से क्लियर हो जाएगा। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली में था, मेरे एक दोस्त ने मुझे बुलाया, बड़ा चिंतित था। उसने बुलाया, मेरे लड़के से बात करो यार, वो आजकल मेरे से ठीक से बात ही नहीं करता यार। मैं शादी की बात छेड़ता हूँ तो कहता हूँ आपसे बात ही नहीं करनी है यार, आप मुझे समझते ही नहीं हो। मेरे क्योंकि दोनों बच्चियों की शादी हो गई है, तो बोले तुम मेरे बच्चे से बात करो यार। तो व्हेन आई वाज ट्राइंग टू दैट बॉय, तो बाकी चीज़ों की तो बात अभी मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। एक उसके मुंह से बात निकली जो मेरे दिमाग में बड़े तेजी से हिट करी यार। पहला तो उसने बोला यार मैं आई एम नॉट रेडी फॉर द मैरिज, मगर ये नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, करूँगा आगे चल के। आफ्टर 1 year 2 years 3 years आई डोंट नो व्हेन आई विल बी रेडी। लेकिन ये आपको अभी से बता दूं, उसकी मतलब गर्लफ्रेंड भी थी। वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल बी डिंक कपल। डिंक किसी ने सुना है? DINK? Yes, sir. वेरी गुड। Double income. हाँ, ये स्मार्ट बैठी है यहाँ पर मदर। डिंक मुझे नहीं पता था मैडम। उसने बोला डबल इनकम नो किड्स। यार मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा। मैंने अपने चेहरे से एक्सप्रेस तो नहीं किया, बट उसने बोला नो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन किड्स। हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग शादी करेंगे, लेकिन हम लोग बच्चे पैदा नहीं करेंगे। हम कहा यार ये सब तो यूरोप में होता था, जापान में होता था, फिनलैंड में होता था, अमेरिका में होता था, इंडिया में कब से चालू हो गया यार? यहाँ के यंग लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी कि इससे खूबसूरत रिश्ता दुनिया में है कोई? अगर कोई इस रिश्ते को पनपने से पहले ही डिनाई कर रहा है, एक जो माँ बाप का रिश्ता अपने बच्चे से होता है, मुझे लगता है इतना इंटेंस, इतना खूबसूरत और ऐसा रिश्ता जिसमें आप सेल्फलेसली, मियाँ बीवी इतने सेल्फलेस नहीं होते क्या? वो बीच बीच में गिव एंड टेक करने लगते हैं। देखो सब मम्मियाँ अपना सिर हिला रही हैं, लेकिन जब आपका बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, पढ़ने लगता है, तो कोई ये सोचता है मुझे इससे कुछ मिल जाए। विथ योर फुल लव, डिवोशन, सपोर्ट, माँ बाप दोनों बच्चों को कितना प्यार करते हैं। तो इतना खूबसूरत रिश्ता लोग यार पहले से ही डिनाई कर रहे हैं। अब समझ में आ गया क्यों बधाई दी, है ना? क्योंकि आप सब लोगों ने ये सुंदर काम किया है अपने जीवन में। ये जो लाइफ जिससे कंटिन्यू हो रही है यार, जिसने भी ये ईश्वर ने कायनात बनाई है, ये कंटिन्यू कैसे होगी? एक तो ये एस्पेक्ट है, और दूसरा जो मैंने जस्ट कहा कि हम अपने को इतने खूबसूरत तजुर्बे से वंचित कर रहे हैं, जीवन की इतनी बड़ी सुंदरता से अपने को मशरूफ रख रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और कुछ टीचर जो आज बैठी हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी फैसला तो आप करोगे, आप ये डिंक विंक के चक्कर में पड़ना है। तो अब जब पेरेंट बनी गए हो तो बढ़िया पेरेंट्स बनो यार।
जैसे मैंने बताया, मुझे उसने क्यों बुलाया यार, वो खुद क्यों नहीं बात कर रहा अपने बच्चों से। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं और जानने वाले जो अपने बच्चों से बात करने के लिए मुझे बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं भाई, खुद क्यों नहीं करते? आप लोग बड़े होकर चाहते हो कि आपको किसी और को बुलाना पड़े? आप चाहते हो कि आपके बच्चे से बिल्कुल फ्रेंकली आप खुद बात कर सके और बच्चा भी आपसे फ्रेंकली बात कर सके? अगर आप ये चाहते हो तो आज के वर्कशॉप को बहुत अच्छे से अटेंड करना है, क्योंकि इसमें जो हम आपको बताने वाले हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और जितना हम अगले 2 घंटों में आपस में बात करने वाले हैं, मेरा मानना है उसका अगर आपने 10-20% भी उठा लिया और उस 10-20% का आधा भी इंप्लीमेंट किया अपनी लाइफ में, तो आपके बच्चे से बड़े खूबसूरत रिश्ते होंगे, आपके बच्चे बड़े अच्छी तरीके से ग्रो अप करेंगे। और लाइफ ऑलरेडी क्या है, नर्चर अपन ने सबने सुना है, सबसे फेमस कहानी मैंने तो बचपन से सुनी है कि बच्चा जो है वो गीली मिट्टी है, हम तो चाहे शेप दे सकते हैं। सबने सुना है ना, कि मतलब इन्वायरमेंट में इतना पावर है, पेरेंटिंग में, इन्वायरमेंट में, स्कूल में, एक्सटर्नल इतना हमारे पास पावर है कि वो एकदम ब्लैंक है, उसको जो चाहे शेप दे सकते हैं। बहुत लोगों ने ऐसा कहा, बड़े बड़े विचारक भी ऐसा कहते हैं। और जब हम लोग अपने स्कूल का मिशन बना रहे थे या शिक्षा मिशन बना रही थी, तो वो भी यही लिख रही है कि एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद नो लिमिट्स। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा एवरी चाइल्ड इज बॉर्न जीनियस। ये सुना है, एवरी चाइल्ड इज बॉर्न जीनियस। लेकिन आगे का सेंटेंस थोड़ा अच्छा नहीं है। आगे का सेंटेंस पता है मैडम आपको क्या है? उन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्दी हम सब मिलकर उसका जीनियसपन खत्म करते जाते हैं। देखो यार क्या गजब की बात है। बच्चा अब समझ में आ रहा है कि हाउ ब्यूटीफुल द चाइल्डहुड इज एंड हाउ कॉम्प्लिकेटेड वी मेक इट। फिर हम भी तो कभी बच्चे थे, व्हाई वी हैव बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड। तो हमको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनना है अगर हम जो आज बात करने वाले हैं इसको आपने समझा और अपने जीवन में उतारा तो। और नेचर वाले क्या बोलते हैं? नेचर वाले कहते हैं भैया जो वो है वही है, हम कुछ नहीं कर सकते। ही इज बॉर्न, सब लिखा हुआ है, पिछले जन्म में लिखा हुआ है, पिछले कर्मों का लिखा हुआ है, उसके प्रारंभ पहले से तय है, उसके जीन्स में है, उसकी प्रोग्रामिंग तय है, बचपन से ही लिखा हुआ है कि वो क्या बनेगा। आप लोग क्या सोचते हैं बताइए? यही चीज है सर कि जिसमें उसे इंटरेस्ट होगा हमें वही उसी में उसको अप्रिशिएट करना है। तो जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा वो उस इंटरेस्ट को लेके पैदा हुआ है? नहीं, यही तो बाद में प्रश्न है। उससे नेचर के थ्रू वो चीजें मिलेगी सर। नहीं, नेचर जब हम कह रहे हैं ना तो इसका मतलब है जीन्स उसके अंदर है, उसके डीएनए में लिखा हुआ है। और नर्चर का मतलब है कि एनवायरनमेंट उसको ये सब सिखा रहा है, उसको माहौल कैसा मिलता है। आप क्या कह रही हैं? माहौल नहीं सर, उसके अंदर जो आर्ट है उसको दिखाना। अंदर उसके, मैडम का कहना है कि उसके अंदर कुछ ऐसा है जो यूनिक है, ठीक है ना? तो चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इनबॉर्न नेचर। और कोई? अरे बोलो यार, यहाँ कोई नंबर नहीं है ना, कटने हैं। सर मैं बोलती हूँ वंडरफुल आंसर। और 50% ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चा अपनी जीन्स में लेके पैदा होता है और बाकी का जो 50% रहता है वो पेरेंट्स देते हैं उसको अपनी तरफ से। वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से गेन करता है, अपने स्कूल से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, और जो भी चीज़ें वो बच्चा देखता है वो 50% वहाँ से गेन करता है। चलिए बहुत अच्छा, हम 50-50 में एग्री हो जाते हैं यार, नहीं तो यही झगड़े में फंस जाएंगे, दो ग्रुप में बन जाएंगे। तो बेसिकली a child is born with some nature and our job is to nurture. इसमें एग्री कर लिया है ना? हमारे प्रेम जी भी कह रहे थे, मैंने पिलानी से निकलने के बाद एक ही जगह नौकरी की विप्रो में, एंड माय बॉस वाज प्रेम जी। और लकीली उस समय कंपनी इतनी छोटी थी कि उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, अब तो बहुत बड़ी हो गई है। तो वो भी ये कहते थे यार, वो कहते थे यार देखो हर बच्चा एक बीज है, यूनिक बीज। आम का बीज अलग, अमरूद का बीज अलग, एप्पल का बीज अलग, सीताफल का, हर चीज अलग अलग बीज है। मतलब दुनिया हजारों प्रकार के ट्रीज हैं, ठीक है? हमारा काम उसका सकते हैं क्या? सब लोग मुंडी तो हिला रहे हैं, लेकिन ये भी आप कोशिश क्या करते हैं? बच्चा पैदा भी उसको बनाते, मुझे उसको ये बनाना है, क्यों भाई? करते ही नहीं करते ऐसा? अरे जब तुम्हें पता ही नहीं काहे का बीज है तो कैसे बता दो यार कि हमको उसे ये बनाना है?
तो कौन थोप रहा है? हम, है ना? तो लेट अस एग्री दैट इट इज नेचर एंड नर्चर। हमको नेचर को रेजिस्ट नहीं करना, नर्चर हमारा रोल है। और नर्चर में लेट मी टेल यू, साइंटिफिक रिसर्च कहता है पेरेंट से बड़ा रोल दुनिया में किसी का नहीं। जितना इम्पैक्ट बच्चे की साइकोलॉजी में, उसके थॉट प्रोसेस में, उसके पैराडाइम्स में पेरेंट्स का पड़ता है, उतना दुनिया की किसी चीज का पढ़ ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा क्लोज वो अपने पेरेंट्स से है, ये चीज उसके दिमाग से कभी जा नहीं सकती। ठीक है? जैसे बच्चा बहुत छोटा जब माँ के पेट से बाहर निकलता है, बहुत टाइम तक उसको पता है क्या लगता है कि मैं माँ के पेट के अंदर ही हूं। कैसे बताओ? थपथपाते हैं तो सो जाता है ना? क्यों? बड़े बच्चे को थपथपाओ तो आपको हड़का देगा, यार भाई हमको नींद से काहे जगा दिया तुमने थपथपा के? कहेगा भी नहीं कहेगा? और छोटा बच्चा सो जाता है। क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि उसको लगता है मैं माँ के पेट के अंदर हूँ, ये उसकी जो धड़कन है ना माँ की, वो उसको he is used to that. The child is, she or he is used to that. उसको जो झुलाते हैं हम, उसको सॉफ्ट टॉयज देते हैं, ये सब उसको एहसास दिलाता है कि मैं अभी भी माँ के पेट के अंदर हूं। तो ये जो इम्पैक्ट होता है ना, ये दुनिया की कोई चीज दूसरी नहीं क्रिएट कर सकती। तो आपका रोल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपना रोल अच्छे से पूरा नहीं किया, जो सद्गुरु भी कहते हैं अभी, तो फिर जिंदगी भर परेशान हो। और अभी अच्छे से कर लिया तो जिंदगी भर के लिए फ्री हो जाओ। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब मैं इतना आसान प्रश्न पूछ रहा हूं कि व्हाट डू यू वांट फॉर योर चिल्ड्रन? अगर आपको अभी बताओ भाई। सक्सेस एंड हेल्थ, स्वस्थ रहे और सफल रहे। वेरी गुड। हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन, खुश रहे, सेटिस्फाइड रहे। गुड पर्सन इन लाइफ, वेरी गुड पर्सन इन लाइफ। हाँ, और बस? अरे बाकी लोग तो कुछ नहीं चाहते क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता। हैप्पी इन लाइफ, यस। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उसको, निडर, घबराना नहीं। एडवर्स परिस्थितियां आए तो जीवन में सबके एडवर्स परिस्थितियां आती है। कोई ऐसा इंसान सुना है कि जिसके जीवन में कोई एडवर्स परिस्थिति ना आई हो? है ना? ऐसा जीवन बना ही नहीं है। चाहे मोदी जी हो, चाहे ट्रम्प हो, चाहे कोई हो, सबके जीवन में रोज चैलेंजेस आते हैं। मुझे थोड़ा अच्छा कब लगता है, अपन ये कह सकते हैं जो ऐसा रिजल्ट जो हमारे एक्सपेक्टेशन वाला नहीं था या हमारे फेवर में नहीं था, ऐसा रिजल्ट जो अमूमन अच्छा नहीं माना जाता है, तो उसको भी वो फेस करके फिर खेल। जैसे खिलाड़ी होता है ना, खिलाड़ी क्या करता है? रोज खेलता है यार। कोई ऐसा खिलाड़ी जो हमेशा जीतता है? कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है। सचिन तेंदुलकर के जीवन में विराट कोहली बेचारा कितना परेशान था थोड़ा दिन, है? तो फेलियर तो आना ही है, हम उससे निराश न हो, घबराए नहीं, फिर उसके खेले। वेरी गुड। फेस द चैलेंजेस, गुड। फेस द चैलेंजेस, challenges is a much better word than difficulty or failures. In fact, failure की जगह challenge is a much better word. भाई लाइफ में चैलेंजेस आते रहेंगे, हम फेस करते रहेंगे। गुड डिसीजन मेकर, वंडरफुल। जीवन में आपके पास हर क्षण चॉइस रहती है, मैं ये करूं कि ना करूं। आज लोगों के पास चॉइस थी, जब हम ये अटेंड करने जाएं कि ना जाएं। यू मेक ए चॉइस। हमारी चॉइसेस ये सिद्ध करती हैं, डिटरमाइन करती हैं कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, हमारा लाइफ किधर जाएगा। ठीक है ना? तो अगेन मैं मिशन, जो सिद्धिया ने मिशन बनाया स्कूल के बच्चों के लिए, पहला तो उसने ये लिखा है कि चाइल्ड इज बोर्न विद नो लिमिट। अगले में उसने ये लिखा है कि विट्स इज ए स्पेस वेयर ही डिस्कवर्स लाइफ, हिज वॉइस एंड हिज ड्राइवर्स। जो आप लोगों ने अभी एग्री किया ना, क्या बच्चा यूनिक है, उसका ड्राइवर क्या है, उसको क्या पसंद आएगा, ये हमें नहीं पता। ये चाइल्ड डिस्कवर करे। और कब डिस्कवर करेगा? जब हम उसके आसपास ऐसा माहौल बनाएंगे। क्या पसंद है? छोटे सा बच्चा बताता है यार मेरे को ये सब्जी पसंद है, ये बच्ची सब्जी कहां से आ रहा है? उसके अंदर से आ रहा है। और ये चॉइसेस उसकी बदलती भी रह सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि 3 साल में उसको कुछ खा रहा तो उसको खूंटे की तरह पकड़ लो यार।
फिर 6 साल बाद कुछ कहा तो अरे तुमने तो ये कहा ना। अरे इवॉल्व हो रहा है बच्चा यार, हम लोग भी तो बदलते रहते हैं, समाज बदलता रहता है, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, करेक्ट। तो ये सब आप चाहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें सबने कही जो बच्चों में चाहते हैं। अब अगला प्रश्न ये है, अच्छा ये तो वही है, वही जो आपने बोला उसी को हमने 3-4 लाइनों में समअप करने का प्रयास किया है। अब इसके आगे का प्रश्न भी आपको आंसर करना है। अभी आप ये क्वालिटीज भी डेवलप करने के लिए कर क्या रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो अपने समय का कितना परसेंटेज आप कॉन्शियसली कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे वो हैप्पी बने, वो चैलेंजेस फेस कर सके, उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो, वो इमेजिनेटिव हो, वो क्रिएटिव हो, वो हैप्पी हो, क्या कर रहे हैं उस समय। अच्छा पहले ये तो करना क्या चाहिए, अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे में क्वालिटी हो तो हमको क्या करना चाहिए? Being interactive with them, wonderful. हमको उनसे डायलॉग करते रहना चाहिए, गुड। अच्छा ठीक है, उससे बात करके हमें यह जानने का प्रयास करें कि उसको क्या अच्छा लग रहा है, उसको क्या अच्छा नहीं लग रहा है, गुड। कम्युनिकेशन गुड, इंटरेक्शन तो बोला ही, हाँ, यस। Allow him to do whatever he wants to do. Allow him to do whatever he wants to do. What is constructive? कंस्ट्रक्टिव, हाँ ये जरूरी है कि तोड़ फोड़ कर रहा हो तो मत अलाउ करो, हाँ सुनना चाहिए, वंडरफुल, सुनना चाहिए पहले उसको। फ्रेंडली बिहेवियर, यहाँ आके मैंने देखा सब लोग एकदम ऐसे बढ़िया, सबका विवेक काम कर, अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं नहीं मालूम, ये तो उनका मन जानता है ना। तो कुछ कुछ आप लोगों को पता है कि हमको क्या करना चाहिए, और कुछ कुछ अभी हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है यार, सबसे ज्यादा बच्चा सीखता है जो आपको करते हुए देखता है, वॉट ही ऑब्जर्व। हम जो सुन रहे हैं उससे ज्यादा इससे सीखते हैं हम क्या देख रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं। तो बिना शब्दों को भी वो सीखता है। मैं आपको बता रहा हूं, बड़े से बड़े लोगों से आप पूछिएगा, उन्होंने जो सीखा है लोगों को एक्ट करते हुए सीखा। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप झूठ बोल रहे हो और आप उम्मीद करो कि आपका बच्चा आपसे सच बोलना सीखे, या आप दिन भर मोबाइल यूज कर रहे हो और आपको लगे मेरा बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है, फिर मैंने जब वो दुखती है फिर आप जाके अपना मोबाइल चेक करना, दिन में कितना घंटा यूज कर रहे हैं, फेसबुक ये फलाना ढिमका सब दुनिया भर है, और उसके बाद आप कहते हो कि मेरा बच्चा एडिक्ट हो गया है, वो दिन भर मोबाइल देखता है, मेरे से मोबाइल छुड़ाता है। दस्तखत करना बन जाते थे दोनों, सोचिए। लेकिन मुझे लगता है हम उनके बच्चे हैं, मैं बिट्स पिलानी गया, मेरा ब्रदर सिविल सर्वेंट बनना उसने छोड़ दिया, हम सब लोग बहुत अच्छे से जीते हैं। इनफैक्ट हमारी फैमिली पे कभी आपको बताएंगे बहुत सारी मूवीज भी बनी है। लेकिन इन सब के पीछे पता है क्या है, क्योंकि हम लोगों ने अपने माँ बाप से क्या सीखा? 2 चीजें, पिताजी से सीखा ईमानदारी और कर्मठता, जबरदस्त मेहनत, काम करना है मुझे और ईमानदारी से काम करना है, और माँ से सीखा प्यार और कंपैशन, हर व्यक्ति से प्यार करना है, सबके प्रति सोचना है। इन 2 वैल्यूज को सब भाई बहनों ने इतना सीखा है कि अब हम लोग को समझ में आता है। कई बार हमको ये समझने में बहुत समय लग गया। उन्होंने कभी हमसे बोला थोड़ी कि सबसे प्यार करो या बहुत मेहनत करो या ईमानदारी बोल के नहीं सिखाया, ये करके सिखाया। चलिए अब अपन फिर साइंस पे आ जाते हैं, हम अभी बिहेवियर पे चले गए थे। आजकल मैं देखता हूं पेरेंट्स को बड़ी स्ट्रगल करते हैं, भयंकर परेशान रहते हैं बच्चों से। वो खाता नहीं है, वो सोता नहीं है, वो रोता है, वो परेशान करता है। ये जो बिग कंसेप्ट क्यों आ रहा है? माँ बाप को लग रहा है यार ये बहुत बड़ी जवाबदारी बच्चा पैदा करना है, यार मेरा करियर डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरा फिगर खराब हो जाएगा, मेरा फलाना हो जाएगा, मैं इतना समय नहीं दे पाऊंगी, मेरे अपनी प्रायोरिटीज इतनी ज्यादा हैं। तो ये तो समझ में लोगों को आ रहा है कि आसान काम नहीं है। छोटा बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो शुरू में तो माँ बाप को, आप लोग यंग पेरेंट्स भी कहीं समझ में नहीं आता है क्यों रो रहा है, इसका टाइम टेबल बिगड़ता रहता है सोने का उठने का, तो इट्स अ बिग चैलेंज, राइट। अब थ्योरी ये कहती है कि जब जब आपको चैलेंजिंग लगता है, जब जब आपको लगता है मैं परेशान हो रहा हूं बच्चे से, वही टाइम है कि जब आप कुछ ऐसा करें
कि आपके बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा और आपकी जिंदगी भी बड़ी अच्छी हो जाएगी। मतलब जहां जहां मैं परेशान हो रही हूँ या हो रहा हूँ बच्चे के साथ, दोज आर द अपॉर्चुनिटीज वेयर बाय एक्टिंग डिफरेंटली, एक अलग तरीके से बिहेव करके जो हम आपको सिखाने वाले हैं, आप उस मूवमेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं इन डेवलपिंग योर चाइल्ड एंड इन डेवलपिंग योरसेल्फ। नेक्स्ट, होल ब्रेन चाइल्ड। अब साइंस आ गई थोड़ी सी। ब्रेन जो होता है ना, उसके कई कंपोनेंट हैं। हमको ऐसे बच्चे का विकास करना है जिसके पूरे दिमाग का विकास हो रहा है, एक कंपोनेंट का नहीं। दिमाग के कई सारे कंपोनेंट हैं। जब सब कंपोनेंट अच्छे से डेवलप होंगे तब वो इंडिविजुअल मिलेगा जिसमें वो सब होगा जो आप सब लोग चाहते हैं। तो लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन कितने लोगों ने सुन रखा है? काफी लोगों ने सुन रखा है। ये बहुत कॉमन है कि एक हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है, एक हमारा राइट ब्रेन होता है। लेफ्ट ब्रेन क्या करता है? अपोजिट साइड को कंट्रोल करता है। ओके, पार्टली करेक्ट, रिमेंबर करना। डिसीजन तो नहीं कहूंगा मैं, लॉजिकल होता है। लेफ्ट ब्रेन जो होता है ना, लॉजिकल होता है, मैथमेटिकल होता है, उसमें भाषा होती है। हम लोग जब आपस में एक दूसरे को समझाते हैं तो क्या यूज करते हैं? लॉजिक यूज करते हैं ना। तो जब हम लोग बड़े होकर समझदारी की बात करते हैं, किसी को समझाने का प्रयास करते हैं या कोई सब्जेक्ट पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम बेसिकली लेफ्ट ब्रेन से लेफ्ट ब्रेन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 2 + 2 = 4, ये लेफ्ट ब्रेन डिसाइड करता है। बारिश हो रही है तो छाता लेना चाहिए, ये लेफ्ट ब्रेन डिसाइड करता है। मतलब जिस चीज में लॉजिक है, जिस चीज में भाषा है, जिस चीज में मैथमेटिक्स है, ये सारा लेफ्ट ब्रेन में। राइट ब्रेन में क्या होता है? ये सबको आंसर याद है, फीमेल्स को पर्टिकुलरली है। राइट ब्रेन में इमोशन ज्यादा होती है। जनरली लोग कहते हैं फीमेल्स इमोशनल होती हैं और मेल का लेफ्ट ब्रेन ज्यादा चलता है, सब जनरली बोलते हैं, हकीकत नहीं है। राइट ब्रेन इमोशन, दुख, सुख, खुशी, दुख, अवसाद, एक्साइटमेंट, इंस्पिरेशन, ये जो भावना का वो ज्वार भाटा आता है, वो सब राइट ब्रेन में आता है। राइट ब्रेन में लॉजिक नहीं चलता। कोई व्यक्ति बहुत दुखी है और उससे जाके पूछो तुम क्यों दुखी हुआ, तुमको होना इतने बड़े हो कि समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको लगता है कि इसको उठा के भी, है ना, तो आगे की भाषा में नहीं यूज कर रहा हूँ कि आपके घर में बहुत बार होता होगा, हर ब्रेन में होता है, ठीक है ना। लोअर ब्रेन के जो इन्फ्लुएंस होता है वो तो आप समझ लीजिए कि उसका दिमाग ही नहीं काम करता है तरीके से। जैसे कोई मारने दौड़ पड़ा किसी को, तो ये क्या है, उसका कौन सा ब्रेन काम कर रहा है इस समय? कोई बिल्कुल ऐसी हरकत कर रहा है जिसको किसी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो वो लोअर ब्रेन के इन्फ्लुएंस में उसका वो है। और जो अपर ब्रेन के इन्फ्लुएंस में होता है वो आपको शांत, समझदार, अच्छी बात करता है, उसका हार्ट एट पीस है, उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको एकदम कंपोज्ड दिखेगी, ठीक है। अब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इनके बीच में आवागमन बड़ी तेज चलता रहता है, इन सारे ब्रेन्स के बीच में, राइट। सो वी हैव टू लर्न नाउ फर्स्ट वी विल लर्न हाउ टू अलाइन बिटवीन, हाउ टू इंटीग्रेट राइट ब्रेन विथ लेफ्ट ब्रेन, ठीक। राइट ब्रेन हमने क्या बोला, जल्दी बताइए, राइट ब्रेन में क्या होता है? इमोशंस। लेफ्ट ब्रेन में क्या होता है? लॉजिक। जब बच्चा पैदा होता है तो सिर्फ उसका एक ही ब्रेन होता है, डाउनस्टेयर ब्रेन। भूख लगना, सोना, चिल्लाना, रोना, ये सब। बहुत जल्दी उसका राइट ब्रेन, इनफैक्ट थोड़ा राइट ब्रेन उसका रहता ही है, वो जो मेमोरी है ना अच्छी वाली बात के अंदर वाली, वो तो राइट ब्रेन में है, वो इमोशन है ना, फीलिंग है ना, सिक्योरिटी की फीलिंग, अच्छा लगना एक फीलिंग है ना, कि हमको झूलने में अच्छा लगता है, ये फीलिंग है ना, इसमें कोई लॉजिक थोड़ी है। हमारे राइट ब्रेन में वो सेंसेशन स्टोर है, वो फीलिंग स्टोर है, तो राइट ब्रेन भी उसका जल्दी डेवलप होता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, जब आप उसको प्यार से गले लगाते हैं, शांत हो जाता है ना। तो अभी उसका लेफ्ट ब्रेन डेवलप नहीं होता है। छोटे बच्चे का लेफ्ट ब्रेन धीरे 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 धीरे
वो ऑब्जर्व करता है चीजें, फिर रिपीट करता है। छोटे बच्चा क्या है, एकदम प्रेजेंट में जीता है, वो उसको पुराना इधर उधर का कुछ याद नहीं रहता, तुरंत कोई भी चीज भूल जाता है, बड़ी से बड़ी चीजें थोड़ी देर में भूल जाता है ना। तो हमको ये देखना है कि ज्यादातर उसका राइट ब्रेन चल रहा है यंग एज में, लेफ्ट ब्रेन उसका चालू होता है जब वो आपसे पूछने लगता है, क्वेश्चन पूछने लगे लॉजिकल, ऐसा क्यों है, ये क्या है, ये कौन सा कलर है, ये सब लॉजिकल क्वेश्चंस है, करेक्ट। लेकिन प्रिडोमिनेंटली उसका क्या चल रहा है, राइट ब्रेन, ठीक है ना। तो जब राइट ब्रेन के इन्फ्लुएंस में आपका बच्चा कोई जिद कर रहा है, परेशान है, रो रहा है, शिकायत कर रहा है, उदास है, तो इसका मतलब क्या है, किसके इन्फ्लुएंस में है, तो हमारा काम है पहले राइट ब्रेन टू राइट ब्रेन कनेक्ट करना। पहले बच्चे को एहसास हो जाए कि आप वो फील कर रहे हैं, आप समझ गए कि वो क्या फील कर रहा है, इसको कहते हैं कनेक्ट। इसकी बजाय लोग करते बताए क्या है, जो ऊपर लिखा है, क्या करते हैं लोग, लोग ये यूज करते हैं जो लिखा है, कमांड एंड डिमांड। मम्मी के पास टाइम नहीं है, पापा के पास टाइम नहीं है, तुम छोटे बच्चे हो, तुम 2 मिनट में समझ जाओ मैं क्या चाहती हूँ, तुरंत चुप हो जाओ, टाइम नहीं, मेरी बस का टाइम हो रहा है, मुझे ऑफिस पहुंचना है, और वो करे। या हम उससे डिमांड करते हैं तुम ऐसे बिहेव करो, जल्दी चुप हो जाओ, जाओ कमरे में चले जाओ, छोड़ दो मुझे, मेरी गेस्ट है, मेरी फ्रेंड आई हुई है। हम बच्चे से डिमांड करते हैं या हम बच्चे को कमांड करते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये उसके ब्रेन को डेवलप करने का बिल्कुल काम नहीं करता, ये उसके ब्रेन को डैमेज करने का काम करता है। क्योंकि अभी जो उसको ये लग रहा है कि अगला मुझे समझने का मतलब पहला स्टेप पता है क्या है, किसी ने बहुत अच्छी बात बोली यार, कि सुनना सीखिए। हम सिर्फ सुनते, बातों से नहीं सुनते, हम सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो क्या फील कर रहा है। किसी से आप प्रेम से बात करिए, अच्छी बात, और गाली देने के अंदाज बोले आई लव यू, तो उसको लव जाएगा क्या, फीलिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट। तो छोटे बच्चे की पहले हमको फीलिंग को कनेक्ट करना है, राइट। ये हम अपने स्कूल जाते, जो सपना का स्कूल है, अभी कुछ दिन पहले मैं गया, छोटी सी बच्ची, मैंने देखा थोड़ी सी उदास बैठी थी, तो मैं गया उसके पास, मेरे ख्याल से 2nd स्टैंडर्ड की थी, मैं क्या हुआ बेटा, तुम तो उदास दिख रही हो, बोली हाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। मैंने क्या हो गया, बोले आज मेरा पीई पीरियड नहीं हुआ। पीई पीरियड मतलब फिजिकल एजुकेशन, आपको पता है हम लोग के स्कूल में फिजिकल एजुकेशन का पीरियड कंपलसरी है, हर बच्चे को डेली खेलना जरूर है, बिल्कुल। ये सिद्धिया का कहना है कि ये दिस इज नॉट नेगोशिएबल, इसको हम नेगोशिएट नहीं करना, बच्चे को खेलना है मतलब डेली खेलना। तो मैंने कहा अरे सही बात है यार, तुम्हारी तो उदासी गाड़ी एकदम सही है, मैं भी तुम्हारी जगह होता तो उदास हो जाता, रोज मन तो मेरा भी करता है खेलने का, मैं भी रोज खेलता हूँ, सुबह उठ के जाता हूँ बाहर अपने ग्राउंड में, तुम भी करती हो। तो थोड़ा वो मेरे तरफ देखने लगे, ध्यान दिया उसने कि मेरी बात को समझ रहा है, कनेक्ट हो गया हमारा, है ना। हमने कुछ उसको कमांड डिमांड कुछ नहीं किया। अब हम उसके लेफ्ट ब्रेन की तरफ देखो ले जा रहे हैं। मेरी अगली जो सेंटेंस है उससे हम चाह रहे हैं कि वो भी लेफ्ट ब्रेन की तरफ चले। अच्छा बेटा ऐसा क्यों हुआ, आपने पूछा टीचर से? तो बोली नहीं। तो मैंने कहा अभी चल के पूछिए अपने टीचर से। तो बोली हाँ। तो हम उसको साथ लेके और एक्टिविटी टीचर के पास गए, वो बैठी हुई थी। तो हमने पूछा नीरू मैम आज इनका पी पीरियड क्यों नहीं हुआ? तो उसने बोली सर हमारे 2 स्पोर्ट्स टीचर ना बाहर गए हुए टीम को लेके, एक कोई किसी स्पोर्ट की टीम को लेके कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गया हुआ था, कोई बाहर गया हुआ था, तो आज हमारे पास स्पोर्ट्स टीचर कम है तो हम लोग सबकी नहीं लगा पाए। तो फिर उस लड़की ने ध्यान से सुना, तो मैंने कहा बेटा इसलिए नहीं हुआ है, फिर भी हम इनसे कहेंगे कि कोशिश करके चाहे सब्जेक्ट के टीचर के साथ आपको खेलने भेजें। आपको टीचर को चिंता होती ना आपकी लिए, तो मैं जानने का प्रयास करूं कि हुआ क्या। दिस इज गोइंग फ्रॉम राइट ब्रेन टू every time with your child you should do this, every time। करना तो हर इंसान के साथ चाहिए, हर मियाँ को अपनी बीवी के साथ ऐसे ही करना चाहिए, है ना। हर बहन को अपने भाई के साथ बहन के साथ ऐसे ही करना चाहिए कि पहले राइट टू राइट ब्रेन कनेक्ट स्थापित करो यार, लेफ्ट में बाद में जाना, ठीक है।
तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको डे टू डे लाइफ में मिलेंगे जहां आपको राइट से पहले कनेक्ट करना है। सबसे पहले बच्चा अपसेट है तो उसके अंदर कोई इमोशन चल रही है, हमको उसको ये फील कराना कि आई हैव फेल्ट योर इमोशन। जो तुम फील कर रहे हो वो मैं भी फील कर रहा हूं, मुझे समझ में आएगा कि तुम क्या फील कर रहे हो। आपका आधा काम हो गया। अब धीरे से लॉजिक की बात करो, कुछ ट्रस्ट ही पूछो, कुछ उसका सुनो, ठीक है? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? फर्स्ट कनेक्ट विद द once that connection is established, then slowly we लेफ्ट ब्रेन में जाके आप डिसिप्लिन की बात करो, क्या सही है क्या गलत है इसकी बात करो, बाउंड्री सेट करो। अच्छा, जब मैं ये कह रहा हूं उसका मतलब ये नहीं कि उसकी कोई गलत बात हमको मानना है। नो 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 नो, वी कम टू दैट। अभी हम जब अपस्टेयर्स और डाउनस्टेयर्स ब्रेन में आएंगे, लोअर अपर ब्रेन में आएंगे, तो हम कहीं ये नहीं कह रहे कि अगर बच्चा कोई अनजस्ट डिमांड कर रहा है, ऐसी डिमांड कर रहा है जो ठीक नहीं है अपना ब्रेन यूज करके, तो उसको हमको मानना नहीं है। लेकिन फर्स्ट स्टेप ऑलवेज हैज टू बी दैट इज इमोशन, और हमारी इमोशन थोड़ा कनेक्ट हो है, ठीक? फॉर एग्जांपल्स, श्रुति कैन यू गिव सम एग्जांपल्स? श्रुति, सिद्धिया, सिद्दीकी, कि कैसे पहले राइट ब्रेन से हम कनेक्ट करें फिर लेफ्ट में लाएं। मैंने दिया, मैं और भी दे सकता हूं, तब तक तुम सोचो, हमें एक और देते। ये तो बिल्कुल एकदम लेटेस्ट है। मैं इंदौर के लिए निकल रहा था, उसके एक दिन पहले का था। मैं गया तो स्टेयर केस में 3-4 बच्चे यहाँ बैठी थी, एक बच्ची इधर बैठी थी, इधर मुंह करके ऐसे एकदम उदास, और वो 3 उसकी यहाँ थी। तो मैं गया उसके पास, उन्होंने क्या हुआ, तो शिकायती लहजे में कहती है ये जो तीनों है ना, एक तो मुझसे बात नहीं कर रही है, और दूसरा टीचर को बोलती है मेरी शिकायत करती है, टीचर को भी मेरे बारे में उल्टा सीधा बताती है, और अभी भी मेरे से बात नहीं कर रही है, और ये तीनों मिलके मेरे को परेशान कर रही है। वो रियली उदास दिख रही थी, और वो तीनों बिल्कुल उदास नहीं दिख रही थी, वो अपने डिफेंस मोड में थी। उन्होंने बोला नहीं सर ये सही कह रहा है, ऐसे ही करती है ये हम लोगों की बात जाके टीचर को बता देती है, और हमको नहीं इसके साथ खेलना है। तो फिर क्या हुआ, मैंने देखा कि कुछ बड़ी बच्चियां हमारे स्कूल की 2-3 यहाँ से निकल रही थी, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा बेटा तुम पूछो तो थोड़ा क्या दिक्कत है। तो उसने पूछ के मुझे यही फीडबैक दिया जो मुझे ओरिजिनल में रहा था, कि वो ये कह रही है कि ये शिकायत करती है, और हमको सुना, और वो कह रही है कि मैं करती। तो मैंने कहा अच्छा बताओ बेटा तुमको क्या करना चाहिए। बच्ची बड़ी वालों से मैंने पूछा, देखो मैं उनके क्योंकि दे आर नॉट अंडर एनी इमोशन, वो तो न्यूट्रल है, वो तो उदास नहीं है, वो उनके झगड़े में थर्ड एम्पायर है, उनका दिमाग काम कर रहा है। तो मैंने सीधे उनसे पूछा कि बताओ यार तुमको क्या करना चाहिए, कैसे इनसे बात करनी चाहिए, तुमको क्या समझाना चाहिए। सीधे मैं उनका लेफ्ट ब्रेन और अपर ब्रेन एक्टिवेट कर रहा हूँ। तो वो गई, उनसे बातचीत करी बच्ची से, उसकी पूरी बात सुनी कि क्या हुआ था सुबह से, पूरी उसकी कहानी सुनी। देखो ये भी बड़ा अच्छा तरीका होता है, बच्चे को ना पूछो, बताओ डिटेल में, बच्चों को बड़ा मजा आता है बताने में, और बताते बताते क्या है उसका इश्यू खत्म हो जाता है। कई बार आप देखो बच्चा आपको स्टोरी बता रहा है दिन भर की, और आखिरी तक आ जाएगा यही भूल जाएगा कि मैं गुस्सा था यार जब शुरू हुआ था। तो क्या हो रहा है, अच्छा बताओ इस दौरान क्या हो रहा है, इमोशन इज कामिंग डाउन एंड लॉजिक इज ग्रेजुअली। आपने जब उसको बोला स्टोरी बताओ, तो ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस इज हैपनिंग। तो वो बताते बताते मैं तो थोड़ा दूर चला गया पेड़ पौधे देखने में। आज मैंने देखा कि वो आपस में अपना मिलजुल के जा रहे थे सब लोग वापस। So they had sorted it out। उन बड़ी बच्चियों ने उसकी कहानी सुन के, अब जो भी बताया वो तो डिटेल मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप सोचिए कि तुरंत की तुरंत चीजें। अमूमन लोग क्या करते हैं यार, कुछ लोग तो मैंने देखा तुरंत डांटना डमटना चाहते हैं। ये अच्छी बात है, आपकी वो कलीग है, आपको उसको अपने साथ बिठाना चाहिए। अब उसका तो छोड़ो, आपने 3 दोस्तों बुरा नहीं मानना चाहिए, अब आपने ज्ञान पिलाना चाहते हैं। देखा नहीं कि वो उदास है और आपने अपना ज्ञान पिलाना चाहते हैं। ये गलती हम लोग करते हैं, और उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं, मैं तो बहुत सुपर बिजी हूँ, मैं तो पूरा देश चला रहा हूँ, मैं तो मोदी से भी ज्यादा बिजी हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है बच्चे के लिए इतना बैठ के उसकी पहले इमोशन समझूं। ठीक है, तो फिर जो सदगुरु कह रहे करो यार, बुढ़ापे में भी चिंता करते रहना उन बच्चों। अभी अगर आपने उसके माइंड को अच्छे से डेवलप करा दिया,
बिलीव मी इतनी बढ़िया लाइफ जिएगा कि तुम्हारी भी केयर करेगा यार, तुम्हारे लिए परेशानी नहीं बनेगा, तुम्हारी नहीं आसपास सबकी केयर करेगा, उसका इतना अच्छा माइंड डेवलप होगा। सो राइट टू लेफ्ट लिख लो अपने दिमाग में, बिल्कुल रख लो। जब भी बच्चा मेरा डिस्टर्ब है, मुझे राइट टू लेफ्ट चलना है, लेफ्ट को बाद में लाना है, पहले राइट, पहले कनेक्शन बिठाना है, भावना का भावना से कनेक्शन बिठाना है, फीलिंग का फीलिंग से कनेक्शन बिठाना है, तब बाएं। और देन लेफ्ट 9 to 10 इयर्स के बच्चों में ज्यादा लेफ्ट ब्रेन काम 9 to 10 इयर्स में उसके सारे ब्रेन डेवलप हो गए हैं। अब उसमें जो है उसका जो सबसे ज्यादा जिसको डेवलप करने की जरूरत है अपर ब्रेन, वो भी डेवलप होना चालू हो गया, और ये डेवलप होता है 25 साल की उम्र तक, मिड 20s तक। अपर ब्रेन में देखिए विजडम आ रही है, डिसीजन मेकिंग आ रही है, एनालिसिस आ रही है, सही गलत क्या है, मोरालिटी आ रही है, सामाजिक तौर पे क्या अच्छा है अच्छा नहीं है, वैल्यूज आ रही हैं, बहुत सारी चीजें अपर ब्रेन में धीरे धीरे आती है जहां वो डेवलप होता है। उसको ये समझ आती है, अवेयरनेस आती है कि मुझे अच्छा क्या लग रहा है, मेरे लिए अच्छा क्या है, ये सारी चीजें वो डेवलप करता है। कनेक्ट कैसे करें? आई मीन माय क्वेश्चन इज कि कनेक्ट करना है बच्चे से। देखो, अगर वो बच्चा बिल्कुल पीसफुल स्टेट में है, नहीं है, हाइपर एक्टिव है, तो पहले इमोशन, पहले उसको उसका जो हाइपर एक्टिव बिल्कुल नहीं टोकना, उसको निगेट नहीं करना। हाँ। उनके जो माइंड में है कि हमें ये करना है तो करना ही है, तो उसको कैसे सेट करें? अगर आपने उसकी, इसके बाद वो समझदारी की बात करता है, फिर हो सकता है कि डिसएग्रीमेंट हो, आपको लग रहा है इस समय पढ़ना चाहिए, उसकी चॉइस हो सकती है मुझे खेलना चाहिए, तो इसको डायलॉग से आप रिजॉल्व करो, क्योंकि अब वो समझदार की तरह आपसे बात कर रहा है, लेफ्ट टू लेफ्ट बात हो रही ना। वहां पर गड़बड़ी में क्या होती है, वो भाई कमांड एंड डिमांड वाली। पेरेंट्स को लगता है, अभी तो कह रहे थे नहीं नेचर मुझे सपोर्ट करना है, लेकिन लगता है जो मैं कह रहा हूं वो करो, मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैंने तुमको पैदा किया है। देखो समझो, दो चीजों में डिस्टिंक्शन। क्या आप पहले हमारे लिए करो, क्योंकि वो कर ही नहीं रहे ना, जो हम बोले वो कभी नहीं करते, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, बट आपकी तरफ से कुछ भी नहीं बोला ना, ऐसा हो जाता है। नहीं, आई गॉट योर पॉइंट। देखो ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, मैडम जो ये बात कर रही हैं, हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, अब तुम भी हमारी सुनो, ठीक है ना। ये नैरेटिव को थोड़ा मॉडिफाई करो। एक्चुअली आजकल के बच्चों के ऐसा हो गया है कि क्या? मतलब हमें अगर ये टॉय चाहिए तो हम पहले बात लेफ्ट वाले सर, जैसे भी आपने बोला कि टोकना नहीं है, जैसे एक बार अपन जब की बात माने, 2 बार माने, चलो अपन नहीं टोक रहे हैं, मैं कह ही नहीं रहा हूँ माननी है, टोकने वाली बात है। जैसे टोकने का मतलब ये होता है कि बिना समझे, बिना उसकी भावना से अलाइन हुए हमने कुछ बोल दिया, मैं ये कह रहा हूँ। टोकने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको बात ही नहीं करनी है। देखिए, बिना आपकी भावना को समझे मैंने कह दिया यार ये तो गुस्सा है, या एकदम चुप हो जाओ, ये भाषा टोकना है कि बिना किसी को समझे हम अगर कुछ जजमेंट पास कर रहे हैं या उसको शट डाउन कर रहे हैं, ये टोकना, या उसको डिस्करेज कर रहे हैं, या उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, या उसको निगेट कर रहे हैं, ये है टोकना। भाई आप नहीं कहते अपने हस्बैंड को किसी को, अरे हमको पूरी बात तो करने दो यार, हमारी बात हुई तुमने टोकना शुरू कर दिया, राइट? तो यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, बिना उसकी भावना को समझे हमने बोलना चालू कर दिया तो वो कम्युनिकेशन फिर होती नहीं। नहीं, ठीक है, प्यार से समझेंगे तो। मैंने कुछ ऐसे बच्चे देखे हैं, कुछ ज्यादा फिर वो जिद पे आ जाते हैं। देखिए, न हमको सजा देनी है, ये दोनों काम आसान है। पेरेंट्स यही गलतियां करते हैं, या तो टाइम बचाने के लिए पैम्पर करते हैं, और या गुस्सा होकर उसको डांट देते हैं। जब डिफिकल्ट सिचुएशन होती है तो कुछ लोग फाइट करते हैं, अटैक करते हैं, और कुछ लोग भाग लेते हैं वहां से। पैम्पर करना इज भागना। समस्या का हमने सॉल्व नहीं किया, हम भाग लिए उसकी बात मान के। जिद कर रहा मुझे खिलौना दिलाओ, हम कहा ये टंटा खत्म करो, उसको खिलौना दिलाया और समस्या को हमने खत्म कर दिया। आपने नहीं खत्म किया, उसके ब्रेन को अच्छा डेवलप होने नहीं दिया। हर बार उसके मन के जीवन में नहीं हो, किसी के मन की हमेशा जीवन में होती है क्या? हमको सीखना पड़ता है यार कि कई बार अगर हमारी डिमांड सही नहीं है तो वो नहीं होता। देश में संविधान है, समाज में कुछ नियम है, उनको सबको फॉलो करना पड़ता है।
तो ये वो तभी सीखेगा जब आप उसको जो पैम्परिंग वाली लैंग्वेज है वहां अपने को कंट्रोल करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि हम टाइम नहीं देना चाहते, तो या तो पैम्पर करते हैं या डांट देते हैं। दोनों में आप उसका ब्रेन अच्छे से डेवलप। किसी की भावना को समझना पैम्परिंग थोड़ी है। ये कोई कंफ्यूजन किसी को हो रहा है क्या? किसी की फीलिंग को समझना क्या पैम्परिंग है? बिल्कुल नहीं है यार। अगर कोई दुखी है, उसके दुख को मैंने समझा, तो मैंने क्या उसको पैम्पर किया है क्या? You tell me when your examples are ready. I am spending more time here. चलो मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने कल भी दिया था। मैं बड़ी उम्र का देता हूँ। मेरे एम्प्लॉई है, बहुत अच्छा एम्प्लॉई है, 2006 से हमारे साथ काम कर रहा है और हर साल बेस्ट टीचर का अवार्ड उसको मिलता है। इतना बढ़िया पढ़ाता है, बच्चे उससे इतना खुश रहते हैं। एक बार हम लोग आपस में इसी तरह हम लोग सेशन करते रहते हैं, हम लोग सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं एक दूसरे से। तो कोई और सिखा रहा था, मेरा ब्रदर सिखा रहा था और एक हमारी एक एम्प्लॉई सिखा रही थी। तो उससे जब वो लोग डायलॉग कर रहे थे तो पता है उसने खड़े होकर बोला कि ये मतलब कोई पुरानी बात बताई, 10 साल पुरानी, कि एक दिन कुछ हुआ था जिसमें मेरे लिए, जिनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़ा उनको मैं आदर देता हूँ, उन्होंने मेरे को कुछ ऐसी चीज बोल दी कि मेरे को इतना दुख हुआ कि वो दुख मुझे आज तक है। ठीक। जब मुझसे पूछा गया तो मुझे तो यार वो इंसिडेंट याद ही नहीं था। क्यों नहीं याद था? क्योंकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था उसको हर्ट करने का। मतलब मेरी नजर में मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि किसी को हर्ट करना। अगर आपने जानबूझकर किया तो सबको याद रहता है। अगर आपने जानबूझ के याद नहीं किया तो आपको क्या क्या याद रहेगा भाई? मगर उसको हर्ट हुआ, उसको तो याद है। इससे उसका हर्ट कुछ कम होगा क्या? नहीं होगा। अच्छा, राइट ब्रेन यूज करें तो मुझे क्या करना चाहिए? सुन लिया, बोल तो दिया, स्टेज पे खड़े होकर बोल दिया यार कि मेरे को दुख हुआ। ये देखिए, खड़े आएंगे ताली बजा। बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने यही किया ना यार, मैंने इनकी सुन ली एडवांस में। मैं गया, उसको गले लगाया एंड आई सेड सॉरी। तो मैं पैम्पर कर रहा हूं उसको, ये बताओ, एम आई पैम्परिंग हिम? एम आई पैम्परिंग हिम? भाई हमने तो गलती की नहीं, बोल रहे हैं। अब बताओ उसके अंदर कितना क्या असर पड़ा होगा? उस दिन से उसका वो हर्ट गिर गया, वो उसके मेमोरी से हट गया। आप सोचो 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 सोचो। ये उदाहरण इसलिए दिया है कि तुम्हारे बच्चे को जब भी तगड़ा हर्ट हुआ है और अगर किसी ने मरहम नहीं लगाई तो वो हर्ट कहां जाता है? इट स्टेज, इट बिकम्स ए लाइफ लॉन्ग पेन। उसको याद नहीं होगा लेकिन उसकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। उसकी इमोशनल फैब्रिक डिस्टर्ब हो गई है। लोग बचपन के दर्द पूरी लाइफ नहीं भूलते, पूरी लाइफ। उनको ऐसे ऐसे पूछोगे तो याद नहीं होगा, मगर उसके बिहेवियर में वो दर्द, आपको उस जैसी कोई भी घटना होगी तो उसको वही दर्द महसूस होगा जो उसको बचपन में हुआ था। अब इसकी आप ग्रेविटी, इसकी गंभीरता समझिए। छोटे बच्चे के दिमाग में अगर कोई इमोशनल स्कार क्रिएट हो गया तो उसको मिटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो भूल जाता है। जब हम बड़े होते हैं ना, हम अपना लेफ्ट ब्रेन चलाने लगते हैं, खूब हर जगह लॉजिक से लॉजिक बात करते हैं। तो आपके लॉजिक में वो तो है ही नहीं, मगर आपकी मेमोरी में वो स्टोर है, वो अनुभव स्टोर है। और उससे भी गंभीर बात, अगर उसका रोल प्ले करने वाला माँ या बाप है, फिर तो मान के चलना वो भूल ही नहीं सकता, क्योंकि वो दर्द किसने दिया? किसने दिया? सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में सबसे टेंडर, सबसे क्लोज, सबसे स्ट्रॉन्ग। मैं कहता हूं सारी दुनिया आपके बच्चों को कहते तुम ठीक नहीं हो, माँ बाप उसको रोज कहे तुम दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो ना, उसको ये याद रहे। सारी दुनिया कुछ भी कह रहे ना, उसको रिजेक्ट कर देगा, लेकिन तुमने उसे रिजेक्ट किया, फिर सारी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही। वो बात नहीं आएगी उसके अंदर, कभी नहीं आएगी। दैट इंपॉर्टेंट। तो अब समझ में आ रहा है, कभी भी अपने रोल को हल्के में मत लो।
ये दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। बड़ा चीफ एग्जीक्यूटिव बनना भी उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है जितना ये रोल है कि जिसको मैंने पैदा किया है उसको मैं प्यार से बड़ा करूं, उसके पूरे ब्रेन को हेल्दी वे में विकसित करने का जिम्मेदारी मेरी है, राइट? तो वो सारे मूवमेंट जिसमें वो हर्ट है आर टू बी डेल्ट विद अटमोस्ट केयर, ठीक है? कहीं ये नहीं कह रहा, लेकिन उसकी हर्ट वाले ब्रेन को यूज करना। घटना हुई, कोई स्टिमुलस हुआ, किसी ने कुछ बोला, बच्चे ने कुछ बोला, हमने तुरंत रिएक्ट कर दिया। ये सबसे ज्यादा अज्ञानता का काम है, सबसे ज्यादा ब्रेन के डिसबैलेंस होने का सूचक है, परिचायक है। और प्रोएक्टिव आदमी, प्रोएक्टिव तो बिल्कुल अपर ब्रेन का काम है। प्रोएक्टिव वो पर्सन होता है जो पहले से सोचता है क्या हो सकता है, पॉज बटन दबाता है। जब भी कुछ होता है सबसे पहले पॉज बटन दबाता है, शांत, पॉज बटन दबाया उसने, फिर थोड़ी देर बाद ऑन किया, सोचा समझा, फिर अपना ओपिनियन दिया, ठीक है ना? तो बच्चे के साथ तो रिएक्टिव होना इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू, वर्स्ट थिंग, क्योंकि आपने अपनी अगली साइड दिखा दी उसको। आपने लोअर ब्रेन जहां हिंसा आप उसको एक्सपोज कर रहे हो, आप उसके विजडम से थोड़ी एक्सपोज कर रहे हो उसको, ठीक है ना? रिएक्टिव कभी नहीं होना चाहिए, हम लोग रिएक्टिव हो जाते। वंडरफुल, इनके लिए ताली है यार। छोटा बच्चा 3 साल का, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि उसको सॉरी नहीं बोल सकते। सॉरी कह के आप क्या कह रहे हो उसको? जैसे चोट लगी ना, तुरंत हमने मरहम कर दिया, हमने उस अनुभव को मैच्योर होने थोड़ा वो बताएं कि लैंग्वेज कैसे अलग अलग होती है, कनेक्ट करने की भी लैंग्वेज। कि जैसे बच्चा अगर परेशान है या अगर आपको लग रहा है कि वो अभी सुनने के मूड में नहीं है, तो हर बच्चे के साथ एक चीज काम नहीं करेगी ना। कुछ बच्चे को लगेगा कि उसको टच करो, किसी बच्चे को लगेगा उससे बात करो, किसी बच्चे को लगेगा कि उसको कोई एक्टिविटी कराओ। तो जब आपके बच्चे जिस एज ग्रुप में हैं, 8, 9, 10 इयर्स में, सबके साथ एक ट्रिक काम नहीं करेगी। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो दोनों के साथ हो सकता है एक अलग तरीके से कनेक्ट करना पड़े। तो आप में से कितने लोग अपने बच्चों की वो भाषा समझते हैं कि किस भाषा में उसको फील होता है कि मम्मी मुझे समझ रही है या पापा मुझे समझ रहे हैं? व्हाट इज दैट लैंग्वेज? हाउ मेनी ऑफ यू नो और हाउ मेनी ऑफ यू आर अनश्योर? सो हाउ मेनी ऑफ यू आर श्योर? इट डिपेंड्स ऑन हिज मूड आल्सो। तो किसी चीज के लिए उसको कोई एक भाषा समझ में आती है, किसी के लिए कुछ। तो आप समझ पाते हैं कि किस समय उसको क्या चाहिए। एक एग्जांपल देंगे कि इसमें ये काम करता है, उसमें वो काम करता है, बाकी लोग के लिए अच्छा रहेगा। मीन्स मेरा जो रिएक्ट रहता है, मैं बिल्कुल शांत हो जाता हूँ, कुछ भी नहीं उससे बोलती हूँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो बोलते रहता है, तब तक मैं सुनती हूँ शांत। वो जब सारी चीज़ें उसकी कंप्लीट कर लेता है तब मैं उसको धीरे से बोलती हूँ, हो गया बेटा, ठीक है, अब इस तो सॉल्यूशन ढूंढते हैं हम। तो या तो उसको कुछ एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें मैं बोलती हूँ, या फिर उसको कोई स्टोरी में उसको चीज़ें समझाती। जैसे जब वो एग्रेसिव हुआ है काफ़ी ज़्यादा और उसके साथ जो चीज़ें हुई है, जैसे अभी बीच में ही हो रहा था, मैंने शायद सबको बोला भी था, मैंने स्कूल में भी बोला था, मतलब 1.5-2 साल पहले की बात है कि एक बच्चा उसे बहुत परेशान करता था बस में। वो आके बिल्कुल स्कूल से आके बिल्कुल चिड़ा सा रहता था और बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता था, मम्मा मैं नहीं जाऊँगा बस में, बिल्कुल नहीं जाऊँगा, बिल्कुल नहीं जाऊँगा। बस वो चीज़ शांत हो जाता था। उसके आधे घंटे बाद मैं उससे बोलती थी, ठीक है बेटा, मैं स्कूल चलूँगी, मैम से बोलूँगी, सर से बोलूँगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मैं बस वाले भैया से भी बोलूँगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर मैं उसको कुछ ना कुछ स्टोरी से वो चीज़ को समझाती थी, तो देन फिर वो बिल्कुल स्टोरी की 2 फ्रेंड्स हैं, इस तरीके की 2 फ्रेंड्स हैं, उसमें ऐसा होता है, ऐसा होता है, मतलब हर स्टोरी अलग अलग चीज़ से रिएक्ट करती है और रिलेटेड रहती। तो मेरा मतलब 2 चीज़ें रहती, या तो मैं उसको कुछ खेल से समझाती हूँ, और सेकंड थिंग इज दैट कि या तो मैं उसको किसी स्टोरी से उस चीज़ को कनेक्ट करके उसको समझाती हूँ, तो फिर वो बोलता है हाँ मम्मा ये सही बात, फिर वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। और कोई सिचुएशन जिसमें आप कुछ और करती हैं, जैसे आपने कहा कि जब वो एग्रेसिव होता है तो आप शांत रहती हैं, लाइक वो अपसेट रहता है कभी कभी, हाँ,
काफी ज्यादा अपसेट हो जाता देखिए, है। इट इज सो नाइस। बच्चे के दो इमोशन एकदम अलग है। एग्रेसिव होना और अपसेट होना अलग बात है। उसको एक बात नहीं समझना चाहिए कि बच्चे का मूड खराब है। मूड खराब तो बहुत ही जनरल टर्म है। मूड खराब से कुछ समझ में नहीं आता। वो कितने अच्छे से आइडेंटिफाई कर पा रही है कि बच्चा एग्रेसिव है मेरा या अपसेट है। तो जब अपसेट होता है तो क्या करती हैं? मैम एक्चुअली मैं मॉर्निंग से वो स्कूल आ जाता है, दिन भर मैं नहीं मिल पाती हूँ, मैं वर्किंग वूमन हूँ, तो वो इन लॉज के पास रहता है, दादा दादी के पास रहता है। तो एक्चुअली दादा दादी जी का नेचर रहता है ज़्यादा ही पैम्पर करना, और मेरे बच्चे को वो चीज़ बहुत ज़्यादा सही नहीं लगती। मुझे बार बार ये बोलते रहते हैं, मैं कोई छोटा सा बच्चा हूँ क्या इस तरीके से वो बोलता है। तो एक्चुअली ही इज सो क्रिएटिव, सो उसको क्रिएटिव चीज़ें करना पसंद है, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना ज़्यादा पसंद है, खुद में ही सारी चीज़ें करना पसंद है। तो और दादी जी का उसका थोड़ा सा नेचर ऐसा है कि नहीं नहीं बेटा ये मत करो, नहीं नहीं बेटा ऐसा मत करो, ऐसा करो वैसा करो। तो कभी दुखी हो तो मतलब जैसे ही मैं आती हूँ इंटर करूँगी, मामा मैं नहीं रहूँगा, मामा मैं नहीं रहूँगा। उनका क्या हुआ? नहीं हाँ मम्मा दादी जी ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, मतलब बिल्कुल एकदम अपसेट हो गए। दादी जी आपके अच्छे के लिए बोलते हैं, थोड़ा सा वो सारी चीज़ें बोल देता है। फिर मैं उसके लाइक जैसे सर ने मुझे बताया कि राइट ब्रेन से कनेक्ट होना चाहिए, तो थोड़ा सा मैं उसके राइट ब्रेन से कनेक्ट होती हूँ कि देखो दादी जी पापा को भी बोलते हैं ऐसा, आपकी फिक्र करते हैं इसलिए ये चीज़ बोलते हैं। फिर लाइक वही मेरी चीज़ की कुछ ना कुछ मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं जब छोटी थी ना तब मैं भी बहुत मस्ती करती थी, शरारत करती थी, तो मुझे भी मेरे पापा समझाते थे, मम्मा समझाते थे। तो इस तरीके से मैं उससे कनेक्ट करती हूँ। फिर उसको वो चीज़ कभी सही लगती है तो वो बोलता है हाँ मम्मा ठीक है अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो थोड़ी सी चीज़ें ऐसी होती है कि मैं उससे कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, बट कभी कभी थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि मैं भी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट रहती हूँ, ऑफिस वर्क से परेशान रहती हूँ, थोड़ा सा शाउट कर देती हूँ। लाइक मैम ने किसी ने बोला था कि सॉरी बोल देते हैं तुरंत, तो फिर मैं सॉरी बोल के उसको हक कर लेती हूँ, तो फिर वो न्यूट्रल हो जाता है। इस तरीके से रहता है। बहुत अच्छा कर रही हैं। मेरी भी जो कुछ फ्रेंड्स रही हैं वो मुझे जब बताती हैं, तो अभी उनके बच्चे छोटे हैं, तो इट इज नॉट समथिंग दैट यू आल्सो एंजॉय। मैं इस एग्जांपल को थोड़ा और आगे लेके जाती हूँ। सतना स्कूल में भी ये बहुत होता है, कुछ बच्चा किसी दूसरे बच्चे को ज़्यादा परेशान कर रहा है, परसिस्टेंटली परेशान कर रहा है, तो जैसे इन्होंने अपने बच्चे से बोला, पहले उसकी पूरी बात सुन ली, फिर थोड़ा उसको कोई कहानी बताई। तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, शी इज अ मदर, शी इज टॉकिंग टू हर लाइक जस्ट वन चाइल्ड। एट स्कूल हम क्या करें भाई, वो तो रोज आना है, रोज वो फ्रेंड्स है, रोज उनको बस में जाना है, और एक बच्चा मान लीजिए सही बस दूसरे बच्चे को थोड़ा ज़्यादा रोज कुछ कर रहा है। तो मैंने तो ये भी नोटिस किया है कि इन दिस एज ग्रुप ओनली, आपका बच्चा कितने साल का है? 9 years। 9-10 साल के बच्चे, मुझे याद है कि एक पॉइंट के बाद मेरा उनसे इतनी अच्छी बातचीत होने लगती थी कि मैं उनसे कहती थी तुम ये सोचो यार तुम्हारा फ्रेंड ऐसा करता क्यों? तो फिर बच्चे मुझे इतने अच्छे जवाब देते थे कि मैं भी हैरान हो जाती थी। मुझे तो नहीं पता भाई उसके साथ क्या हो रहा है। तो फिर वो मुझे कभी बताता था कि जिस दिन उसका लंच अच्छा नहीं आता है ना, तो उस दिन उसका मूड अच्छा नहीं रहता। इमेजिन, नो टीचर, नोबडी कैन गेस दिस, लेकिन उसको खुद ही समझ में आ गया कि मेरा फ्रेंड उस दिन ज्यादा चिड़चिड़ा होता है जिस दिन उसका लंच अच्छा नहीं आता है। मेरी मम्मा या हमारी व्हाटएवर, हमारी मम्मा के पास टाइम है, वो हमें ये देती है, उसकी मम्मा कभी कभी उसको जब ये चीज दे देती है तो उसको वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा देखो तुमको जब उसका लंच बॉक्स खुले तुम्हें ऑलरेडी दिख रहा है कि उस दिन वो लंच लाया है, तो अपना लंच शेयर कर दो उसके साथ। उसने बोला हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ये आप सोचिए, एक 9 साल के बच्चे को आप क्या चीज सिखा रहे हो। एक्चुअली हम सिखा नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ उसको एक वो दिखा रहे हैं, वो खुद सीख रहा है दूसरे ह्यूमन बीइंग को समझना। दैट अदर पर्सन, उसको भी क्या मजा आ रहा है अपने फ्रेंड को परेशान करने में। और ऐसा ये टेक्निक यूज करके हमने इतने सारे ऐसे बच्चों की मदद की है जो दूसरे बच्चों को परेशान करते हैं। उन्हीं के ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को बोलते हैं कि देखो इस बच्चे की हेल्प करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये ज्यादा गुस्सा करता है ना, ये मार देता है। कुछ बच्चे तो आगे बोलेंगे मैम उसका बिल्कुल मन नहीं था, मैं जानता हूँ उसको बहुत खराब लगता है, लेकिन उस समय वो अपने कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने मार दिया। दैट जिस बच्चे ने मारा वो ये नहीं कह रहा है, उसके फ्रेंड्स कह रहे हैं। सो दे आर टेकिंग ओनरशिप फॉर ईच अदर। इससे ज्यादा टीम वर्क कोई कहीं सिखा सकता है? जितने भी आप लोग कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, हर कॉर्पोरेट में आप लोग की एक्सरसाइजेस कराते हैं, टीम बिल्डिंग की, कोऑर्डिनेशन की, उस सब की, और ये बच्चे 9 साल की उम्र में ये चीज सीख रहे हैं। That's it. तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? Address the specific issue by logical explanation. भाई जैसे इन्होंने अपनी दादी वाली चीज उसको बताई, अब
आज के ज़माने में अगेन जैसे पापा कह रहे थे, कितने कम बच्चे हैं who have the privilege to stay with their grandparents. इतने सारे लोग तो न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो रह सके। बट अगर कोई बच्चा दादा दादी के साथ रह रहा है तो कितना कुछ समझ रहा है बड़ी उम्र के बारे में। एक दिन तो आप भी उस उम्र के होंगे, आप ही के बच्चों को आपका ख्याल रखना है। बागबान की कहानी तो सबने देखी है, सब बच्चा देख के सीख रहा है कि जब मेरे मम्मी पापा इतनी उम्र के वो क्या कर रहे हैं मेरे दादा दादी के लिए, तो सब उसका एक्टिवेट हो जाएगा जब वो आपके जितना बड़ा होगा। तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने के बाद उसके साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग करिए। 21st सेंचुरी लाइफ स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रॉब्लम सॉल्विंग बोली गई है। लाइफ स्किल सिखाओ बच्चे को, रीजनिंग सिखाओ, क्रिटिकल माइंड डेवलप कराओ। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम की प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके साथ करिए ना, कि अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसका क्या करें। भाई दादी को लग रहा है तुम सारा पेंट बिखार दोगे, उनको समेटना पड़ेगा, तुम नीचे स्पिल कर दोगे, टाइल में उसका निशान लग जाएगा। वो दादी से भी कैसे डायलॉग कर सकता है, या अगर नहीं कर सकता है दादी से डायलॉग, तो एटलीस्ट अपनी मम्मा से कैसे नेगोशिएट कर सकता है कि देखो ये मुझे करना तो है, आप उस समय घर में रहती नहीं हो, दादी घर में रहती है, तो मैं इसका कैसे प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। तो उसका सारा इमोशन आपने काम डाउन किया, और उसकी क्रिएटिव एनर्जी, वो भी राइट ब्रेन ही है बाय द वे, दैट इज नॉट लेफ्ट ब्रेन, बट दैट राइट ब्रेन इज कंस्ट्रक्टिव एनर्जी। उसको वो कैसे यूज करे, अपना लेफ्ट माइंड यूज करके। सो इट्स, आई थिंक इट्स अ ग्रेट एग्जांपल जो आपने बोला, द वे यू यूज इट। जी मैम, मेरे हिसाब से अगर पेरेंट आप उससे पूछते हैं क्या हुआ बेबी, आप कैसे थे, क्या किया आपने कैसा खाया, आपको किसी ने परेशान तो नहीं किया, तो उस टाइम पे बच्चा जो रहता है बिल्कुल नॉर्मल होके आपको बताता है, मम्मा ऐसा हुआ था, मैंने ये खाया, मैंने ये फील किया, मुझे इसने परेशान किया, उसने परेशान किया। अगर आप इमोशनली अपने बच्चे के साथ अटैच्ड हैं तो आपको अपने बच्चे के साथ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चा सुबह से शाम तक में जो भी उसके साथ एक्टिविटी होती है वो आने के बाद आपसे खुद ही बोलना चालू कर देता है। अगर आप बिजी भी हैं तो बच्चा आपसे कहेगा मम्मा प्लीज़ मुझे आपका 5 मिनट चाहिए, मुझे आपको बताना है मेरे साथ क्या हुआ। मम्मा अगर आप नहीं सुनोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मम्मा आप बात नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आता है। मम्मा प्लीज़ थोड़ा बैठना है आपको मेरे साथ। अगर आप शुरू में अपना टाइम देते हो और उसके बाद आप बच्चे को टाइम देना बंद कर देते हो तो बच्चा खुद आता है। आपका ये डिफिकल्ट सिचुएशन का एग्जांपल शांत, और आपने क्या किया? मैं एक्चुअली बेटी है और मेरा 8 साल का बेटा है, दोनों के साथ ये होता है सिचुएशन डिफरेंट रहती है। 8 साल वाले को कुछ बताइए। 8 साल वाला जो है मतलब लोग ये कहते हैं वो बहुत मतलब ये कह सकते हैं क्रिएटिव है, खेलना है, मतलब ऑल ओवर टाइम वो एंगेज रहना चाहता है कि मतलब अगर मैं यहाँ बैठा हूँ मम्मा मुझे फ्री नहीं रहना, मुझे खेलना है या कुछ करना है या कुछ देखना है या साथ में चलो या कोई एक्टिविटी करो। ऑल ओवर टाइम उसका एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा है कि वो पूरे टाइम बिजी रहता है। जस्ट लाइक सेकंड मतलब छोटी बेबी है जो मेरी, वो भी डिफिकल्ट सिचुएशन जैसे सपोज मैं शॉपिंग करने जाती हूँ, नहीं सपोज नहीं, रियल इंसिडेंट, रियल आप परेशान हैं। मैं डीमार्ट जाती हूँ। पहले ये होता था कि मैं जब शॉपिंग करने जाती थी तो एक ट्रॉली मेरी होती थी, एक ट्रॉली मेरे बच्चों की हो जाती थी। तो जस्ट लाइक ये सोचिए कि अगर मैं 10,000 की शॉपिंग कर रही हूँ तो उसमें से 5,000 की शॉपिंग मेरे बच्चों की होती थी। तो उस टाइम पे मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी कि बच्चे मम्मा ये भी, मम्मा ये भी, मम्मा ये भी, मम्मा ये भी, मम्मा चाहिए ही चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि यार अगर मैं एकदम मना करूँगी तो बच्चों को बुरा लगेगा। फिर मैं दोनों को समझाती थी बेबी मैं इतने पैसे तो लेकर ही नहीं आई हूँ, आप एक काम करो आप दोनों एक एक टॉय ले लो, मैं उसका पेमेंट कर दूँगी। तो फिर बच्चे थोड़ी देर मम्मा लेकिन आप तो बोल रहे थे कि हम जो बोलेंगे आप हमें दिलाओगे और ऐसा करोगे। तो फिर उस सिचुएशन में मुझे कहना पड़ता है बेबी मैं भी तो आपसे बोलती हूँ कि आप मुझे 100% देते हो, अभी तो मैं इतना लेकर नहीं आई, नेक्स्ट टाइम 1 टॉय पक्का है, बट बेबी उससे ज़्यादा मैं आपको नहीं दिला सकती। वाई मम्मा आप क्यों नहीं दिला सकती? क्योंकि पापा ने मुझे जितना दिया है मुझे उतने में मैनेज करना है। अगर आप ये बताओ मैं दाल नहीं लेके जाऊँगी तो दाल कैसे बनेगी, मैं राइस नहीं लूँगी तो आप खाना कैसे खाओगे? तो क्या आप टॉय खा के सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको? नो मम्मा आप सही बोल रहे हो, सारी चीज़ें लेना इम्पॉर्टेंट है। सो जब बच्चे को आप सारी सिचुएशन बताते हैं कि नो बेबी ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, हाँ और आपका टॉय भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप मेरे साथ आए हो, आपने मुझे टाइम दिया है इतना, आपने शॉपिंग की है, मैं आपका दिल नहीं तोड़ सकती, लेकिन ओनली वन। तो मेरे साथ ये होता है कि मेरे बच्चे मुझसे इतना इमोशनली अटैच हैं
कि कुछ भी, मेरा बेटा थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं नॉटी टाइप का है, पर वो कुछ भी करके आता है तो उसके अंदर ये चलता है कि मुझे सबसे पहले जाके मेरी मम्मा को बताना है। मेरी मम्मा 2 थप्पड़े मारेगी, मैं खा लूँगा, बट अगर मैं अपनी मम्मा से अपनी फीलिंग नहीं शेयर करता तो मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, एज अ पेरेंट, नहीं सीरियसली, एक्चुअली एज अ पेरेंट बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती हैं जिसमें जब बच्चा कुछ करके आता है और आपको ऐसा लगता है कि आपने फर्स्ट टाइम किया था, मैंने आपको समझाया, आपने वो चीज़ सेकेंड टाइम रिपीट क्यों की, देन ये गलत है, आपको ये नहीं करना चाहिए था। मैं प्यार भी बहुत करती हूँ, लेकिन जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुझे बच्चे को हर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी मैंने अपने लाइफ में एज अ मदर 8 साल के बच्चा मेरा हो गया है, मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि कभी कभी बच्चे को समझाने के बाद कभी कभी हर्ट करना भी ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो बच्चा ये सोचता है क्या करेगी मम्मा, समझा देगी, हो गया। नहीं किया है मैं हमेशा नहीं करती, बट हाँ कभी कभी और कितने लोगों ने थप्पड़े मारे भाई? इन सब चीजों में लेकिन कि मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, अगर बच्चे से आप रेगुलरली इमोशनल चेक कर रहे हैं तो बहुत जल्दी लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर वो थोड़ा जिद भी कर रहा है, थोड़ा वो भी कर रहा है, लेकिन अगर क्योंकि इमोशनली कनेक्टेड है, उसको 1-2 चीज से समझ में आ रहा है, वो मुझे समझ नहीं है, तो दैट प्रोसेस बिकम्स फास्ट। अगर ये नहीं करते हैं तो थोड़ा शुरू में समय लगेगा। लेकिन जितने लोगों ने हाथ उठाया था मारने की बात को लेके, वो ये बताइए कि झुंझुनाहट में और गुस्से में कितने लोगों ने मारा? टेंशन की यार तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें समझाना बहुत जरूरी है। गुस्से में या उसमें तो कुछ लोगों ने हाथ उठाए थे, दे आर वेरी ब्रेव। और कितने लोगों ने सोच समझ के मारा है? नहीं, गलती में मारने की बात नहीं हुई है। आपके अंदर का भाव क्या था? गुस्सा का भाव, कि भाव ये था कि मुझे मेरे बच्चे का भला करना है। तो फिर तो गुस्से में उठाना, 4-5 बार समझाने के बाद भी अगर बच्चा नहीं मान रहा तो फिर तो गुस्सा आना जायज है। तो बच्चे को कोई सीख नहीं पहुंच रही है, बच्चे को गुस्सा पहुंच रहा है, यही मेरा पॉइंट है बस। And I think he is going to come to that point only, next one. So maybe आपका तरीका काम नहीं कर रहा है, लेकिन गुस्से में मारा गया मार, मतलब and I would encourage you कि आप लोग याद करिए, आप लोग को तो मार जरूर पड़ी होगी। उस समय में ऐसा कुछ नहीं था कि मारना नहीं है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, लेकिन मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने पापा से और उनके लोगों से सुना है, ऐसी मार जो कभी कभी पड़े और जिसका बिल्कुल वो हो, मतलब एक स्पेसिफिक उसका वो हो कि ये एकदम ही नॉन नेगोशिएबल चीज हो गई है, उस पे आपको मार पड़ी है, वो आप लोगों को दुख नहीं देगी। आप जो अपने बच्चों को मार रहे हो वो तो दुख देगा। अगर आप थोड़ा भी मेरी विजडम में बिलीव करते हैं तो मैं ये डिक्लेयर कर सकता हूँ विद फुल कन्विक्शन, कोई भी मारना उसके लिए कोई भी मारना हम लोगों ने कभी नहीं किया है। हम लोगों ने खैर मारना तो बहुत चीजों को तो डांटे ही नहीं, लेकिन मारना तो बिल्कुल ही कभी नहीं, क्योंकि I have also lived in a big joint family, जिसमें when I came तो there were 15 members और 2 में से बड़ी जेठानियाँ, सास और जेठ लोग और 2-3 देवर नंदे। सर की फैमिली बहुत बड़ी, मतलब अब जो मेरी जो फैमिली है, we are a very big joint family। तो और तब वो नहीं था जो आज है, और तब न मेड्स रहती थी न कुछ, तो आपको खाना भी बनाना है, सबका ध्यान करना है, और उसके बाद मैंने कभी नहीं मारा। और आई थिंक मुझे लगता है जो बिगेस्ट रीज़न है, जो सिद्ध्या है या मेरी बेटी सिमरन है, वो दैट्स द वे। एंड इसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी पेरेंटिंग का भी वो रहता है। आई वुड गिव दिस क्रेडिट टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने हम पर कभी नहीं हाथ उठाया। तो मुझे लगता है जस्ट सी हाउ इट रन्स, बिकॉज आई नेवर सॉ माई पेरेंट्स बीट मी। मुझे एक भी इंसिडेंट याद नहीं है कि मेरी मम्मी ने, एंड सेम मेरी मम्मी की भी बड़ी जॉइंट फैमिली थी, 3 चाचा लोग हैं, ताऊ जी हैं, सब है, तो उन्होंने कभी नहीं मारा। एंड वी वर 5 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और सबको स्कूल भेजना, तैयार करना, तो दैट वाज आल्सो नॉट इजी। बट अगर हम ये कर सकते हैं तो व्हाई कांट यू? एंड जस्ट सी व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इनडायरेक्टली पासिंग टू योर चिल्ड्रन। ठीक है, आपके पेरेंट्स ने आपके साथ अगर किया, आपने मार खाई है, बट अब तो आज के ज़माने में आपके पास तो ये डिसीजन है ना, तो एटलीस्ट डोंट बीट योर चाइल्ड, और वही जो उससे कनेक्ट करिए और एक्सप्लेन करिए उसको।
क्योंकि पनिशमेंट जो है ना, मारना एक्चुअली कॉर्पोरल पनिशमेंट है, ये कभी भी अच्छी सीख उसके अंदर अच्छा अनुभव नहीं क्रिएट कर सकता है, एक अच्छी मेमोरी नहीं क्रिएट कर सकता, फियर क्रिएट कर सकता है। किसी ने पीछे का जब मारा तो अब वो सुधर गया, वो है वो काम ही करता, तो आपने क्या उसको डरना सिखा दिया, आपने उसको जो फियर वाली जो इमोशन है ना उसके अंदर वो जमा कर, वो बहुत चीजों से डरेगा लाइफ में। अगर हमको अपने बच्चे को निडर बनाना है, वो हो सकता है आपसे बात ही ना करें। मैंने शुरू में क्या बताया, जो मेरे इतने सारे फ्रेंड्स कहते हैं मेरे बच्चों से तुम बात करो, क्योंकि उनको पता है उनका बच्चा उनसे खुलेगा ही नहीं। क्यों नहीं खुलेगा भाई, क्यों नहीं खुलेगा बताओ? उसके अंदर डर है यार, उसके अंदर ऐसे अनप्लेजरेबल, ऐसी उसने कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए अपने मदर फादर से, जो कॉन्सिक्वेंसेस वो अब नहीं फेस करना चाहता, और इसके लिए उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसका इमोशनल ब्रेन काम कर रहा है अपने आप कि ये इसमें मेरी मम्मा मेरे पापा अनप्रेजेंट काम करेंगे, कमेंट पास कर देंगे, मार देंगे या फिर डांट देंगे। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं उससे बड़े से बड़ी गलती दुनिया में हो जाए, तो आप मुझसे शेयर करेंगे ना करेंगे? हमें चाहते कि नहीं चाहते? मैं अपने बच्चे का भला चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि दुनिया में उसको कोई भी एडवर्स सिचुएशन आए सबसे पहले आके मुझसे शेयर करे। क्यों? क्योंकि मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, मेरा बच्चा है ना। अरे शेयर ही नहीं करेंगे तो कहाँ से मदद करोगे यार? ये तो आपने एक वॉल क्रिएट कर दी, ये आपको नहीं समझ में आती है, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि अभी तो मैं कह रहा हूं ना कि इमोशनल किसी को ना समझना इटसेल्फ उसके अंदर एक इमोशनल घाव क्रिएट करना है। मारना तो यार बिल्कुल ही गलत है, कहीं से जस्ट, और आप तो पोजीशन ऑफ पावर में हो यार, वो कैसे आपको ब्लैकमेल कर सकता है? आप उसकी कोई गलत चीज मत मानो, तो प्यार से भी तो नहीं मान सकते ना। तीसरी बार अगर कोई जिद कर रहा है मुझे ये चीज दिलाओ, आपने 3 बार मना किया, बिलीव में चौथी बार बोलना बंद कर देगा। इतना मूर्ख इंसान दुनिया में कोई नहीं होता है यार, सबको समझ में आता है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अगर हम केव इन करते हैं, अगर हमने कमजोरी दिखा के उसकी गलत बात मान ली तो दोबारा मनवाएंगे, लेकिन अगर हमने नहीं मानी और फर्मली नहीं मानी, प्यार से नहीं मानी, तो उसके दिमाग थोड़े टाइम में समझ जाएगा कि ये चीज मेरी नहीं मानी जाएगी, तो वो अगली बार से उसको डिमांड करना कम कर देगा। लेकिन अगर हमने उसको मार दिया ना, तो ये इम्पेशंस शो करता है। तो अगेन मैं सबसे भगवान बनने की उम्मीद नहीं करता हूँ। सब लोग कह रहे हम इंसान हैं, हमको गुस्सा आता है, हम देवता नहीं, हम देवी नहीं है, तो ठीक है भाई, अगर कभी धोखे से डांट दिया मार दिया तो फिर क्या करना है? और बोलना है कि मुझसे गलती हुई। बेटा तुमको गुस्सा है तो तुम कभी हाथ मत उठाना, मारना इज नॉट गुड। फिजिकली किसी को अब्यूज करना, इट इज ए फिजिकल अब्यूज। आप हाथ से गाली दे रहे हो उसको, भाई मार रहे हो तो उसके अंदर प्लेजरेबल सेंसेशन कैसे आएगा यार? और ना कोई उसकी लर्निंग हो रही है, वो फियरफुल होना सीख रहा है, वो इनडायरेक्टली ये भी सीख रहा है कि मारना जस्टिफाइड है, मुझे किसी पे गुस्सा है तो मैं उसको भी मार दूंगा। बहुत सारे बच्चे स्कूलों में हिंसा वही करते हैं जो घर में बहुत मार खाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम लोगों का रिसर्च बता रहा है। जो बच्चा कभी घर में मार नहीं खाया है वो कभी हिंसा करता ही नहीं है, ठीक है ना? तो मारना तो बिग नो नो यार, बिल्कुल प्रोएक्टिव। पॉज बटन दबाओ, वैसे ही गुस्सा आ रहा हो, मारने की इच्छा हो रही हो तो भाग जाओ सीन से, थोड़ी देर के लिए डिसअपियर हो जाओ, मिस्टर इंडिया बन जाओ, ठीक है? जब दिमाग शांत हो जाए तो फिर बच्चे के पास आओ, राइट? तो कम से कम ये यहाँ से प्रॉमिस करके जाओ, जितने लोगों ने हाथ उठाया था कि मारना बिल्कुल है, कसम खिलाएं तुम लोगों को। चलो लेट्स, अब आप समझिए अपस्टेयर से लो, आपके सब बच्चों का अपस्टेयर ब्रेन बनना भी शुरू हो चुका है। बच्चा मतलब उसने दिमाग लगाना चाहिए। जब कोई बच्चा जिद करता है ना, और सोच समझ के जिद करता है, तो ऊपरी मंजिल से काम कर रहा है, अपस्टेयर ब्रेन से काम कर रहा है। तो मैंने पहले भी बताया कि लो स्टेयर ब्रेन क्या करता है? इंस्टिंक्टिव, रिएक्टिव होता है, तुरंत बहुत गुस्सा हो जाना, बहुत मचलना, बहुत डर जाना, ये सब लोअर ब्रेन। अपर ब्रेन क्या है? वहां विजडम है, वहां समझदारी सीखता है। जैसे मैडम ने बताया ना कि भाई दादी का पॉइंट ऑफ व्यू बताना, उसका पॉइंट ऑफ, उसको एम्पैथी सिखा रहे हैं, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना सिखा रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है किस चीज का, ये आप सबसे, वो है कॉन्टेक्स्ट। मेरे शब्दों के पीछे भावना क्या है? क्या भावना? एग्जैक्टली। मैं चाहता हूं कि बच्चे के अंदर किसी प्रकार का कोई घाव इमोशनल क्रिएट ना हो।
हम बच्चे का भला चाह रहे हैं, बच्चे का माइंड अच्छा डेवलप होना है, ये कॉन्टेक्स्ट है, ना कि ये कॉन्टेक्स्ट है कि आपको गलत है। तो टेक्स्ट में तो वो कहती है अलाउ नहीं करती है। अगर लड़की उसके टेक्स्ट को पकड़ ले, लेफ्ट ब्रेन चलाए, कह रहे यार ये तो बैकवर्ड है, आजकल तो दुनिया ऐसे, तो नहीं समझेगी। अगर वो कॉन्टेक्स्ट समझेगी, माँ ऐसा प्यार करती है, तुम्हारी सुरक्षा चाहती है, इसलिए बोल रही है। अगर कॉन्टेक्स्ट को समझेगी तो उसका पेन वो समझेगी। ये सब अपर ब्रेन में होता है। कॉन्टेक्स्ट समझना और पूरी चीज को चारों तरफ से देखना, कंपैशन, एम्पैथी, दूसरे को कैसा लगेगा, ये सब समझना, ये अपर ब्रेन में होता है। तो ये सब डेवलप होता है जब आप अपने बच्चे को, आगे चलिए, ये तो डिस्क्रिप्शन है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स है, ब्रीदिंग, सांस लेते हैं, ये लोअर ब्रेन का काम है। कोई सोच समझ के सांस लेता है क्या? नींद में भी तो सांस लेता है। नींद में ना हमारा अपर ब्रेन काम कर रहा है, ना लेफ्ट में राइट, क्या काम कर रहा है? लोअर ब्रेन। तो ब्रीदिंग है, ब्लिंकिंग है, फाइट करना, झगड़ना है, भागना सीन से, गुस्सा, फियर, ये सब लोअर ब्रेन के फंक्शन है। ठीक है? अपर ब्रेन के देखो कितने सुंदर फंक्शन है। अपर ब्रेन के वो सारे फंक्शन है जो सब आप चाहते हैं मेरे बच्चे में डेवलप हो। वहां देखिए पूरी समरी यही लिखी हुई है, थिंकिंग, इमेजिनिंग, प्लानिंग, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, खुद को समझना, दूसरे को समझना, एम्पैथी, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से। एम्पैथी का मतलब होता है आपके वर्ल्ड में घुस के फील भर करना नहीं, ये क्या महसूस कर रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहा है, ये एम्पैथी है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोरालिटी, व्हाट इज राइट, एथिक्स क्या है, सही इस समय सही डिसीजन क्या है, वैल्यू क्या कहती है, मुझे करना क्या चाहिए, मेरे पास ऑप्शन है, ग्रीड के पीछे जाए तो वैल्यू के पीछे जाए। साउंड डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग, कंट्रोल ओवर इमोशंस एंड बॉडी, हमारी बॉडी हमको सिग्नल भेज रही है दूसरे, हमारी इमोशन एंगर की है, उसको कंट्रोल, उसको नेविगेट करना, ये सारी चीजें अपस्टेयर्स में होती है। डाउनस्टेयर ब्रेन इज वेल डेवलप्ड एट बर्थ। अपस्टेयर ब्रेन, गुड न्यूज ये है कि 25 साल तक डेवलप होता है, 25 साल तक पूरा डेवलप हो जाता है। और 25 साल के बाद यार जितने लोग 25 साल के ऊपर वाले वो क्या करेंगे, उनका तो सब कुछ डेवलप हो गया है, उनका तो बन गया, लेफ्ट राइट अपर सब कुछ हो गया, अब उनका कुछ नहीं हो सकता क्या? द गुड न्यूज इज कि अभी भी हो सकता, ब्रेन 25 साल तक पूरा बन गया, आपके मैच्योरिटी सारी थ्योरी, आपकी सोच, उसमें से जो इंप्लीमेंट करोगे तो आपके ब्रेन की फिर रीवायरिंग हो जाएगी। ब्रेन क्या है और साइंस में समझाऊं, बहुत सारे न्यूरॉन्स है जो फायर होकर एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो जब भी आप कोई अच्छा अनुभव करते हो और उसके बेसिस पे आप उसको स्टोर करते हो तो एक अच्छा एक प्रोग्राम बन जाता है। तो रीवायरिंग, कोई नायका का सामान कौन कौन मंगाता है? पता है वो लेडी कितने साल की थी, उसने किस साल में बिजनेस शुरू किया? एट द एज ऑफ 45, समवेयर अराउंड 40, बताओ 40 के बाद उसमें ये जज्बा आया कि उसने अपनी कंपनी चालू की और आज इतनी बड़ी उसका काम शुरू हो गया। तो हम अपने ब्रेन को रिवायर कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पहली बिल्डिंग बनाना और फिर उसमें अल्टरेशन करना, बात का काम कठिन है ना, थोड़ा पेनफुल है। बनी बनाई बिल्डिंग को तोड़ फोड़ करो, अभी आपके बच्चों की बिल्डिंग बननी शुरू हो, तो इस समय ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ना। तो इंगेज, इनने बहुत अच्छा बनाया है, इनका एग्जाम्पल मुझे बड़ा अच्छा लगा। दिस इज इंगेजिंग। बच्चे को हम कॉन्वर्सेशन में, डायलॉग में, कम्युनिकेशन में, बहुत लोगों ने शुरू में बहुत अच्छा कहा कि यू कम्युनिकेट विद योर चाइल्ड। तो जब आप अपने चाइल्ड को इंगेज करते हैं कॉन्वर्सेशन में तो ऑटोमेटिकली यार उसका लेफ्ट ब्रेन भी एक्टिवेट कर रहे हो, उसका अपर ब्रेन भी एक्टिवेट कर रहे हो, उन सब में उसके पास सिग्नल जा रहा है और खुद ही is arriving at decision। जैसे क्या करना चाहिए, तो बताओ यार क्या करना चाहिए। जैसे विद्या ने बोला हमको क्या करना चाहिए, अरे यार उसका खाना उसे ठीक नहीं है तो हमको वैसे ही उससे प्यार से बात करनी चाहिए। हाँ कितनी क्या उम्र है उसकी? 10 बजे सुलाने के अगली अगर मैं ले जाऊँ तो 10:30 तक मैं उससे सिर्फ बात करती हूँ कि क्या, तो मैंने इतनी नई चीज़ें नोटिस की कि वो शेयर मार्केट के लिए पूछता है मेरे से कैसे होता है,
और पूछता है सत्युग कलयुग क्या होता है। वेरी गुड। इतनी बातें उसके अंदर थी जो मैंने कभी जानी नहीं थी, और ये चीज़ें सिर्फ ये आधे घंटे मुझे पता चली कि इतना बच्चा वो सोचता है, इतना आगे वो सोच पा रहा है, जबकि मैं समझ नहीं पा रही थी। तो ये इंटरेक्शन मुझे बहुत अभी नोटिस किया मैंने। तो कनेक्ट बढ़ रहा होगा। बिल्कुल, अब वो शेयर भी करता है काफ़ी चीज़ें। बहुत बढ़िया। यही तो ये स्लाइड बता रही आपको। स्कूल से आया, क्या पढ़ा, क्या खाया, अगर आपने उससे पूछा ना सुबह से शाम तक क्या हुआ, इतने में ही आपका उससे कनेक्शन बढ़ रहा है, उसके अपर ब्रेन को आप एक्टिवेट कर रहे हो जब वो नरेट कर रहा है। तो इंस्टेड ऑफ क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों हो, एक वाली टोन की बजाय उसको एंगेज करना, उससे निकालना कि क्या क्या हुआ उसके साथ। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिना किसी एजेंडा के हम डाइनिंग टेबल में बैठे हैं, सोने के पहले, सुबह वॉक करते वक्त पूछो यार तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तो खुद ही बताएगा तुझे दिमाग में क्या उधेड़-बुन है, क्या क्वेश्चंस नए आ रहे हैं। भाई बच्चा जब ग्रो हो रहा है तो उसका ब्रेन बढ़ रहा है, रोज नई नई चीजें अनुभव कर रहा है, और उस अनुभव के कारण उसके मन में जिज्ञासाएं आ रही हैं। अभी टीन्स में जाएगा, उसके हार्मोन्स चेंज होंगे, उसकी फीलिंग चेंज होगी, बायोलॉजिकल चेंज आ रहा है, तो जैसे बायोलॉजिकल चेंज आएगा ऐसे मेंटल चेंज भी आएगा। तो ही विल हैव लॉट ऑफ क्वेरीज। उन क्वेरीज को अगर पेरेंट्स आंसर करे ये ज्यादा अच्छा है कि कोई खराब किताब या कोई उसका दोस्त उसको आंसर करे। पेरेंट्स, तो इसके लिए आपको माहौल बनाना पड़ेगा, उससे बातों में एंगेज करना पड़ेगा, उसका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। ही शुड ट्रस्ट यू एंड यू शुड ट्रस्ट योर चाइल्ड। ये तो वही हो गया। चलो नेक्स्ट, ये सीखा हमने आज, राइट टू लेफ्ट, लोअर टू अपर। जब उसका लोअर ब्रेन एक्टिव है तब उस समय वो सबसे ज्यादा मचल रहा है। यहां पर क्या करना है, पहले उसको शांत करना है किसी तरीके से। नहीं हो रहा शांत, मान लो आपने खूब प्रयास किया, उससे अच्छे से बात की, उसकी इमोशंस को भी समझी, फिर भी शांत नहीं हो रहा। वेरी गुड, ये तो एक्सपर्ट पेरेंट है। तो भैया आप शांत हो जाएगा, ज्ञान बधारना या डांटना टपटना मत चालू करो। भला हमने खूब प्रयास किया फिर भी उसका माइंड शांत नहीं हो रहा है, तो लीव इट फॉर सम टाइम। मतलब ही हैज टू कम बैक टू नॉर्मलसी, तब हम कोई दूसरी बात करें। लेफ्ट ब्रेन या अपर ब्रेन की बात हम बाद में करें, तुरंत ना करें। ये आप बच्चे थोड़े बड़े हो गए, आखिरी बात अपस्टेयर ब्रेन की मैं बता दूं, जिनके बच्चे 12-13 साल के, 14 साल के, 15 साल के हो गए हैं, उनके बचपन के अनुभवों के आधार पे उन्होंने जो महसूस किया है 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, कुछ उनके इमोशनल प्रोग्राम उनकी मेमोरी में कैद है। देखिए हम क्या हैं, हम जो हमने अपने लाइफ में अनुभव किया, और अनुभवों के बेसिस पे जो हमारा नैरेटिव बना है, जो हमारी सोच बनी है, वो कैसे बनी है, जो हमने अनुभव किया, जो पढ़ा है, जो लिखा है, मतलब हर चीज के ऊपर हमने अपनी ऑटोबायोग्राफी बनाई है। आप किसी से पूछिए अपने जीवन की कहानी, तो अपनी कहानी किस बेसिस पे बताएगा यार, जो उसने महसूस किया है। अब वो कहानी फोटोकॉपी इमेज किसी की नहीं होती। हम लोग इंसान हैं, फोटोकॉपी मशीन नहीं है कि जो 5 साल में एज इट इज बता दे आपको कि वहां 4 लाइन लिखी थी तो ये 4 लाइन बता दी। हर अनुभव के साथ हमने अपना भी कुछ जोड़ा है, और हर बार उसमें कुछ ना कुछ और जोड़ते जाते हैं। तो जो हमारी मेमोरी है, हमारी पुरानी, वो एज इट इज वाली नहीं है, उसमें बहुत कुछ जुड़ा भी हुआ है। अब अगर हमको किसी की ऐसी मेमोरी बनी है जो अच्छी नहीं है, तो हम उसको रीराइट करना है ना। हमें नहीं समझ में आ रहा, हमने कनेक्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन इसके बाद मुझे बच्चे का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में वो ऐसे अपसेट हो जाता है, ऐसे गुस्सा हो जाता है, और हम डायलॉग करते हैं, फिर ठीक हो जाता है, फिर अगली बार फिर यही करता है। तो ये इसका पैटर्न कहां से आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये होता है, तो बड़ों के साथ भी होता है। कई बार हमको लगता है, कोई कहता है मैं गुस्साए हूं, जल्दी गुस्सा आ जाता है, उसको पता ही नहीं क्यों आ रहा है। उसको नहीं पता उसको गुस्सा उसने कहां से सीखा, पता नहीं बता पाएगा, क्योंकि भूल गया बचपन की कौन सी घटना या कौन सी घटनाएं
ने उसको गुस्सैल बनाया और फिर उसको उसने याद रखा अपनी मेमोरी में, अब वो उसके नेचर में आ गया। ठीक है, तो अब करना क्या है, सोल्यूशन सुन लो। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और उनका कोई ऐसा बिहेवियर है जिनका आपको कोई कारण समझ में नहीं आता है, और बच्चे को भी कारण समझ में नहीं आता है, भाई बच्चा शांत हो गया, उसके राइट ब्रेन से आपने कनेक्ट कर लिया, लोअर से ऊपर ले आए, आप लेफ्ट ब्रेन की बात कर रहे हो, अपस्टेयर ब्रेन की बात कर रहे हो, लेकिन उसको भी समझ में नहीं आता कि मम्मी पता नहीं क्यों ऐसे मैं करता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर उसको याद नहीं आता। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? मतलब मुझे अपने बिहेवियर का, जब मेरा ठंडा भी दिमाग है तो याद नहीं आ रहा कि मैं इस चीज से क्यों भड़क जाता हूँ या इस पर्टिकुलर स्थिति में ऐसे क्यों बिहेव करता हूँ जिसका कोई रीजनिंग नहीं है, तो ये उसका पीछे से कहीं से कोई मेमोरी से आ रहा है उसका। ठीक है, तो आपको वही करना है जो आप कर रही हो, मगर वो भाव बन गया। तो बताते बताते क्या होता है फिर, मतलब चेंज होता है। ये मॉडिफिकेशन हो रहा है कि हम उस चीज को रीलिव कर रहे हैं, अपने उस पास्ट की घटना को रीलिव कर रहे हैं और बताते वक्त उसको रीराइट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये हमने नहीं किया तो वो फिर से हो जाएगा। तो हमारी जो इमेजेस हैं पुरानी, वो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती हैं, हमारे राइट ब्रेन में, इमोशनल अनुभव हमारे, और वो लेफ्ट ब्रेन एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि उसके पीछे लॉजिक नहीं है ना। भाई बचपन में पांचवी क्लास में आप पढ़ते थे, आप क्लास में खड़े हुए, आपने बोलना चालू किया, पूरी क्लास ने हंसना चालू कर दिया। ठीक है, हंसे क्यों? क्योंकि आपने कोई फनी बात बोल दिया, श्रीमान जी बोलना था श्रीमती जी बोल दिया, मान सब लोग हंस दिए। अब वो तो हंस के भूल गए, उस समय आपको लगाया तेरी बड़ी बेइज्जती हो गई, आपके दिमाग में स्टोर हो गया, अब मैं दोबारा कभी नहीं बोलूंगी, और आप भूल गई। ठीक है, अब आप बड़ी हो गई, अब कहीं भी बोलना हो, नहीं हम नहीं, अरे इसमें क्या बोल रहे हो यार, इतनी पढ़ी लिखी होशियार हो, टॉपिक तुमने तैयार किया है, क्यों नहीं बोल पा रही हो? नहीं हमसे नहीं, कहाँ जा रहा हूँ, कोई लॉजिक थोड़ी है। सामने वाला कह रहा कैसी यार, इतनी बड़ी हो गई तो समझ नहीं आ रहा यार, अरे किटी में 10 लोग बैठी खड़े होकर बोलो ना बिंदास। अब पता है क्या हो रहा है, उसको याद नहीं है, मगर उसके दिमाग में अनुभव बैठा है कि फिर न हंस दे सब। अब कैसे जाएगा? अगर उसकी कोई एक पूरी कहानी सुन ली, वो याद करे ऐसा हुआ था, तो खुद ही हंसेगा, अरे यार उस समय तो लोग इसलिए हंस दिए थे। तो जैसे मैंने उसको हक किया ना, अरे यार आई एम सॉरी यार, है गलत हो गया उस दिन यार हमसे, तो अब उसको फील हुआ कि अरे हम जबरदस्ती तो ढो रहे थे यार उसको, तो हमने वो जो उसकी मेमोरी है उसको देख लो नहीं ना सामने, इसको ब्रेक किया जा सकता है बड़ी चीज। अच्छे से नहीं किया ना मम्मी जी, यही तो पेरेंट्स को सीखना है यार। अगर फुल पेशेंस पूरे लव के साथ उसको अपन प्रयास करेंगे तो हो सकता है पहली बार नहीं, दूसरी में, तीसरी, अरे वो मांझी ने तो पत्थर तोड़ दिया यार अपनी बीवी की मोहब्बत में। ये है मोहब्बत यार, हैं? खुद भी लेके वो काटता रहा, उसको बताओ कितना उसने प्रयास किया। वेरी ऑन ए सीरियस नोट, अगर कुछ बार प्रयास करो और इस तरीके से बच्चे को बिल्कुल अनगार्डेड रूप में बैठ के एज ए दोस्त उससे इस टॉपिक पे मत लाओ, दूसरी उसकी कहानियां सुनो। बेटा बच्चों ने क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ, कहाँ बात तुमको ठीक नहीं लगा, कहाँ बात तुमको बहुत अच्छा लगा, क्या तुम्हारे अचीवमेंट है, कहाँ बात तुमको फेलियर हुआ, मुझे बताओ, मैं सब सुनने के लिए तैयार हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू जज यू, यू आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, आई विल लव यू इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, जो भी तुम्हारे फेलियर हुए हो। उसे अभी जरूर से बताया आपको बिल्कुल वो डांस करना है, कर लोगे, मुझे विश्वास है उसने इस बार उसमें पार्टिसिपेट किया तो कर लेगा, यही तो मैं कह रहा हूँ। पेशेंस कई बार पता है, देखो हम अपने पिताजी को आज भी याद कर रहे हैं, उन्होंने तो हमको नहीं सिखाया। हमको ये एहसास भी कब हुआ, जब बड़े हुए यार, जब एक किताब लिख रहे थे हम लोग, हमारे परिवार को एक किताब लिख रहा था मेरा छोटा भाई, तो उस किताब के डिस्कशन के दौरान एक दूसरे व्यक्ति ने बोला
बोला यार आपकी फैमिली में जो फिल्म बन रही, किताब लिख रही, उसमें ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे आप हीरो हो, आपका छोटा भाई, आप लोगों ने ये किया। अरे असली हीरो तुम्हारा बाप है भाई। सोचो, दूसरे व्यक्ति ने हमको बताया। क्यों? क्योंकि वहां से आ रही है ये क्वालिटी जो तुमने दिखाई है अपनी लाइफ में, ये तुमने सीखा वहां से है। तो पेशेंस सीखो यार। हम लोग इतने पेशेंट हैं, हम लोग बच्चों को मैंने अभी कुछ बताया है, अभी कभी वो बता दे, हमको करके दिखा दे, मैं तुम्हारी बात समझ गया। इट डजंट हैपन लाइक दैट। ब्रेन का फॉर्मेशन ऐसे नहीं होता। हमको बहुत पेशेंस के साथ बच्चे को, देखो बच्चे के आप मालिक नहीं, आपकी संपत्ति है। इट्स ए डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, राइट? पेरेंट्स का मैं तो कहता हूँ यार 2-3 ही काम है। जैसे मालिक क्या काम है? सुरक्षा, प्यार, खाना। हमारे 3 ही काम है। उसको सुरक्षा देना, उसको प्यार देना, उसको सपोर्ट करना, हमेशा, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। इस प्रिंसिपल को अपनाओगे कि मेरे बस में भगवान है, हमको भगवान ने, हम खुदा से अगर उससे डायलॉग करके धीरे धीरे करोगे ना, तो उसको ये आना नेचुरल है ये क्वेश्चन, मगर उसका आंसर आपकी रफ्तार से हो सकता है उसको समझ में ना आए, धीरे धीरे समझ में आए। तो हैव पेशेंस। बस सर वही है कि उसके कारण क्या है, मेरा और मेरे बेटे का बॉन्ड थोड़ा सा मुझे लगता है कि वीक हो गया है। ऐसा नहीं, तो समझ ही नहीं आती है चीजें जो मैं बोलने की रोज ना नापा करो। कौन से मीटर से नापती हो बॉन्ड का? थर्मामीटर है क्या कोई? मेरा आंसर था, मेरा भी बेटा है 9 साल का और मेरी गुड़िया है 2 साल की। उसका जब आने का था तो मैंने उस बेटे को शुरू से ही ये बात डाली कि एक तो थर्ड पेरेंट है, हम दोनों की जितनी जवाबदारी बनती है, ये तेरा फ्रेंड बन के आएगा, उतनी ही जवाबदारी तेरी है। और शुरू से उसको ये बात दिमाग में आई। इतनी सुंदर बात और है। आज ये कंडीशन है कि वो हमसे ज्यादा उसका ध्यान रखता है। So beautiful यार, so beautiful. She has set the context. ये क्या आप कर सकते हाँ, एक नया आ रहा है तो हम दोनों की भी, तुम्हारी भी जवाबदारी है। हम पेरेंट्स हैं, थर्ड पेरेंट को है, इससे ज्यादा जब तुझको देख के वो सीखेगी, तो बाकायदा यही फॉलो करेगा। चलिए, तो अपन किया क्लोजिंग। हर चीज में मेजरमेंट मत करो, लेफ्ट ब्रेन में करो मेजरमेंट। कितने बजे उठना है, कितने बजे जाना है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कितने नंबर लाने हैं। राइट ब्रेन कारण है, प्यार कारण है, सुंदरता कारण है। किसी को बोलो गुलाब का फूल काहे अच्छा लगता है, हमको हर चीज का कारण चाहिए। लेफ्ट ब्रेन ऐसे काम करता है। सबका रीजन बताओ, क्यों पसंद है तुमको भाई वनीला? अरे हमें नहीं पता भैया, हमको पसंद है यार। सुन लो भाई बात, हम तैयार नहीं है, तुम बताओ यार, उसका कलर पसंद है, उसका टेस्ट है, क्या उसको मिलता है। तो जब छोटा बच्चा है तो उसके राइट ब्रेन से कनेक्ट करो, उसके अपर ब्रेन को समझो, लेफ्ट में ले जाओ, ऊपर ले जाओ, बच्चे से प्यार करो, उसको सपोर्ट करो, उसकी गलत बात मानने की, अच्छा ये वाली चीज छूट गई क्या आपकी ऊपर वाली? इंगेज करने में जब आए ना, जरूरी नहीं है, जब आप उसको अपर ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन में ले आते हो ना, तो वो समझता है, आप बाउंड्रीज तय कर सकते हो। मेरा ये कहना नहीं है कि बच्चे को बिल्कुल इनडिसिप्लिन बना दो। जो चीज नहीं माननी है वो उससे डायलॉग करके अराइव एट द डिसीजन। ठीक, चलो आप, यू वर ऑल ए वेरी वंडरफुल ऑडियंस एंड पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।